So hello everyone and guys, welcome to the session. So now guys, we have the dates for both the RBI grade B and the NABARD grade examination with us. हमारे पास अगर मैं एग्जाम डेट्स की बात करूं तो योर RBI examination is scheduled on 8th of September and your NABARD date is 1st of September, which means you do not have that much amount of leverage of time that is being devoted to you with regards to the phase 1 examination. मोटा मोटा आपके पास एक महीना बचा है और अब इस एक महीने में आपकी वो सिचुएशन है जिसको बोलते हैं करो या मरो. और इस करो या मरो में अगर मैं बात करूंगा गाइस, we will be helping you, the team EduTap will be helping you in preparing your current affairs in a very thorough manner. So today we will be starting with the government scheme session here. बहुत important है. If you are preparing for NABARD examination guys, I will say there the government scheme really plays an important part because you have a 40 marks of ESI जहां पे हमेशा हर साल गवर्नमेंट स्कीम्स डोमिनेट करती है. इवन इन एग्रीकल्चर यू विल सी अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस है, वहां पे भी गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं. तो इसका मतलब अगर आप नाबार्ड एस्पिरेंट हो सीरियस तो आपको तो गवर्नमेंट स्कीम्स बिल्कुल ही नहीं छोड़नी. अगर आप आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है यार कि फेज 1 में आरबीआई में भी 15 से 16 क्वेश्चन स्कीम से पूछे जाते हैं, विच इज कैरिंग अ वेरी गुड वेटेज हियर. So you should also follow because फिर आपको phase 2 में schemes बहुत important है because ESI objective is dominated by government schemes. And guys, in this lectures what we are planning is we have started it from the month of June onwards. Reason उसका क्या था, क्योंकि हम आपके साथ already रिवीजन सेशंस पहले भी लेके आ रहे हैं जिसमें हमने स्टार्ट किया था जनवरी ऑनवर्ड्स, स्कीम स्टार्ट की थी, फिर हम ESI एंड FM करंट अफेयर्स आपके साथ पढ़ाए थे. तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई वी हैव डन ऑलरेडी on our YouTube platform, so you can watch those sessions also. Specifically अप्रैल मई आप देख लेना. उसके अलावा मैंने फेब टू अप्रैल का एक आपका स्कीम्स रिवीजन सेशन भी लिया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. बट आई विल से गाइस, last 3 months plays a key role here, so these months you must not skip. I'm not saying must not skip वाले सेशन आपको करने ही करने हैं. चलिए जी, on that note let's start with the session here. That first of all let me brief you that how we are going to take these sessions guys. Sessions कैसे होंगे, जैसे कि in terms of government schemes, the things that I have already done from the past here, I will give you some questions, you should answer those questions, then we will get to the explanation of the scheme. We will again come back to the question and we'll see whether the answers that we are giving is right or wrong. आपको यहाँ पे ऑनेस्ट होके आंसर देना है, ठीक है जी. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है यार, मैं आपको बोला हूं अगर आपके सारे आंसर भी गलत हो जाते हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है, और मैं ना ही आपको इश्यू होना चाहिए अगर सारे आंसर गलत हो जाते हैं. इश्यू तब होगा अगर मुझे वो स्कीम समझ नहीं आई, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस, it's about the thorough understanding of the scheme. That is the main motto of this lectures, that we will be coming with the government schemes. I will be coming, my motto is कि आपको सारी स्कीम समझ आ जाए. तो that was the थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जी of the classes here. Now let's start with the first scheme for the day. So I'm leaving my screen guys. What you have to do is pause here and give the answer here. तो देखो जी, यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा. क्यों होगा अभी उस पे आएंगे. फिर आपका पास सेकंड क्वेश्चन, अगेन पॉज द स्क्रीन हियर. प्लीज टेक अ नोटबुक विद यू एंड राइट डाउन द आंसर्स कि देखो मेरे सारे आंसर सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको चेक करना है अपने आप को. यहां पे आंसर बन जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 3 हियर. पहली बात, अगर मैं पहले क्वेश्चन पे जाऊं तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हमें बताना है कि एक स्कीम है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट थी. ठीक है जी. कीवर्ड्स यहां पे क्या है, 700 लाख टन, 2 ट्रिलियन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और फिर क्या आता है, एम क्या है विद रिगार्ड्स टू PACS. सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है अगेन करेक्ट स्टेटमेंट. यहां पे पहला कीवर्ड क्या है, 500 मेट्रिक टन टू 2000 मेट्रिक टन. दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है स्टोरेज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू फार्मर्स. तीसरा पूछ रहा है इंटीग्रेशन होगी जी किसी स्कीम के साथ, या फिर चौथे स्टेटमेंट में कीवर्ड है ओनली. So this is the things that have been asked here. Now first of all, as I told you, we will be going to the scheme first. What is this scheme all about? Now you can see behind me the scheme name is written as world's largest grain storage scheme. Now with the naming I can understand हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमें दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज बनाना है. तो मेरे पहला क्वेश्चन यहां पे क्या होगा, अगर मैं बेसिक स्कीम को पता हूं
कि स्टोरेज कितनी होगी, व्हाट शुड बी द स्टोरेज हियर, मैनेजिंग ऑफ द स्टोरेज हियर, how it will be created, then which ministries will be involved in creating the storage here. फिर अगला क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि यार इनका अगर स्टोरेज तो फार्मर्स के लिए कर रहे हो आप ग्रेन स्टोरेज, तो फार्मर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा. Now when you have some certain questions in the mind guys, then it will be easy for you to understand the schemes, because schemes में हमेशा बोलता हूं आप अपने आप को क्वेश्चनिंग करो तब आपसे स्कीम जल्दी याद होगी. So on that questions, let's start with the scheme here. First of all, this is a scheme on which RBI has already asked us a question. नाबार्ड ने नहीं पूछा बट RBI पिछले साल इस पे क्वेश्चन पूछ के हटा है, ठीक है, 2023 में, क्योंकि पिछले साल ये स्कीम लॉन्च हुई थी इन द पायलट फेजेस. सो पायलट प्रोजेक्ट्स में ये स्कीम लॉन्च हुई थी. कौन सी स्टेट्स हैं, प्लीज रिमेंबर द स्टेट्स दैट्स बिहाइंड मी. मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, you have Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Assam, Tripura, Uttarakhand and Telangana. These are the major states where this scheme is implemented on pilot basis. Now why this pilot phase is important guys, because look at the thing here. अभी क्या हुआ है, इसकी एक रिव्यू मीटिंग हुई थी और गवर्नमेंट ने बोला है that let's extend this scheme to additional 500 primary agricultural cooperative societies, that is on the terms of आपका पायलट बेसिस में. यानी कि अभी भी ये स्कीम पायलट फेज पे चल रही है एंड देन इट विल बी रोल्ड आउट एट नेशनल लेवल, बट एट दिस पॉइंट अभी ये चीज नहीं हुई है. नाउ माय क्वेश्चन इज हु इज इंप्लीमेंटिंग, दैट्स माय फर्स्ट थिंग. कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, इंप्लीमेंट इसको कर रहा है, इफ आई टॉक अबाउट द नोडल मिनिस्ट्री हियर इज मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन. नाउ इट इज अ सरप्राइज थिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि कोऑपरेशन कैसे हुआ, बट आप समझोगे आगे जाके स्कीम में दैट गाइस इन दिस होल स्कीम कोऑपरेशन इज द मेन थिंग that is required here, because we will be going further and we'll see that there are different sort of ministries which are here. ठीक है, so Ministry of Cooperation is actually the nodal ministry here. Then as I told you, agri infrastructure create करना है at PACS level, fair price shops, processing units, warehousing units. The objective is, I told you, largest food grade storage. So this is the target we have. I told you largest food grade storage. तो पहला पॉइंट ये याद करना है, that is the target capacity, overall capacity which we are aiming or targeting through this scheme is 700 lakh metric ton is the theme. The 700 lakh metric ton हम target कर रहे हैं कहां पे, in the cooperative sector. This is an important point for us guys, because the examiner might play with us कि यार 700 lakh cooperative sector का target, 700 lakh target है all सेक्टर्स. नहीं जी, ये कोऑपरेटिव सेक्टर्स में, यानी कि हम यहां पे लार्जेस्ट एग्रीगेट स्टोरेज बनाएंगे इन द कोऑपरेटिव सेक्टर. दैट इज व्हाट द स्कीम इज हियर. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल आउटले फॉर द स्कीम इज ₹1 ट्रिलियन. ठीक है जी, तो इसलिए वो 2 ट्रिलियन वाली ऑप्शन गलत होगी. अब आगे आ जाते हैं. नाउ एज आई टोल्ड यू वी नीड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हियर. आई टोल्ड यू दैट स्टोरेज कैसे होगी, स्टोरेज कॉर्पोरेशन तो सिर्फ क्या कर रहा है, इट इज काइंड ऑफ कोऑपरेटिंग. But what are the different sort of ministries that are involved here? Please note down the 3 ministries behind me. That is Agriculture and Farmers Welfare. We have Ministry of Food Processing Industry. And then we have the Ministry of Consumer Affairs. अब ये कर क्या रहा है, देखो सबसे पहला फंडा समझो. हमें क्या करना है, हमें डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैपेसिटी बनानी है. So when we talk about decentralization here, decentralization in normal terms means as, अगर ESM में पढ़ता है तो उसको बोलते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच, कि हमें लोअर लेवल से पहले स्टोरेज कैपेसिटीज बनाने और फिर हम बनाते बड़े लेवल्स पे जाएंगे. दैट इज द मेन थिंग ऑब्जेक्टिव है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजर थिंग हियर, दैट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज हाउसेज will be in the range of 500 metric ton to 2000 metric ton. Now this is an important point. Again, second important point. Why? हमने पढ़ा था जो 700 लाख मेट्रिक टन है वो ओवरऑल कैपेसिटी वी वांट टू जनरेट, बट इन टर्म्स ऑफ सिंगल स्टोरेज हाउस द रेंज ऑफ दैट स्टोरेज हाउस विल बी फ्रॉम 500 मेट्रिक टन टू 2000 मेट्रिक टन हियर. एंड हाउ वी विल बी मेकिंग दिस स्टोरेज, बिकॉज फॉर स्टोरेज वी नीड फंडिंग, we need infrastructure. So for that purpose, and we also want that if we are creating a storage, the storage should be filled also. तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या किया, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को इन्वॉल्व किया. सबसे पहले इन्वॉल्व किया आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, वेयर दे सेड दैट वी हैव अ स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. उसके अंदर आपको इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया गया है
for 3% under this project which are worth of cost of rupees 2 crore rupees. Okay, so this is the first thing here जहां पे आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन्स के लिए पैसा मिलेगा. ये पहला फंडा है. Now I told you infrastructure. That is how infrastructure will be built. Then second come is marketing infrastructure. Because if you are creating a warehouse, you need a marketing for that also. So then comes your agriculture marketing infrastructure scheme here. Then comes the MIDH mission for integrated development of horticulture, and then we have sub-mission on agriculture. All these schemes of agriculture ministry will be playing a prominent role here, which means they are helping us in creating the storages here. Then comes the second ministry known as your Ministry of Food Processing Industry. ठीक है जी. अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कर रही है, वो बेसिकली आपको हेल्प करेगी इन दी फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस. दैट्स द पीएमएफएमई स्कीम विल बी हेल्पिंग हियर. एंड सेकंड विल बी पीएम किसान संपदा योजना. दे आर काइंड ऑफ हेल्पिंग इन फॉर्मलाइजेशन. और दूसरा कहां पे हेल्प करेगी? कहीं ना कहीं स्टोरेजेस में. And then comes your last ministry, Ministry of Consumer Affairs. What they are doing is actually they are basically helping you in the storage part. Allocation of food grains. Getting this point? I told you if we are setting up the storage houses, उसमें भाई आपको storage house में रखना भी तो है, तो वो कैसे रखोगे? यहां से Consumer Affairs help करेगा. They will be allocating the food grains here. ठीक है? Then आ जाता है procurement operation. ठीक है जी. प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन क्या है? प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन आता है एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जो आपकी एमएसपी के लिए प्रोक्योरमेंट होती है, दैट विल आल्सो बी यूटिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द स्टोरेज हाउसेस. तो दिस इज हाउ द स्टोरेज हाउसेस विल बी वर्किंग हियर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर. नाउ अगेन द क्वेश्चन कम्स इन माय माइंड, सर व्हाई देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन? क्योंकि काम तो ये तीनों एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्रीज कर रही हैं, तो कॉर्पोरेशन कहां से आएगा? Cooperation will be helping us on two things, guys. First of all, now these are different ministries, so there will be an inter-ministerial committee that will be constituted, and here the Minister of Cooperation will be the chairperson. Getting this point कि यहाँ पे इन सबको इकट्ठे लेके आना, कॉपरेशन बनाने के लिए आपका मिनिस्ट्री ऑफ जो मिनिस्टर इंटर मिनिस्ट्रियल कॉपरेशन में जो आपके मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन है वो यहाँ पे हेल्प करेंगे. Then we have a coordination committee. This is a ministerial committee. Then we have coordination committee also that will be chaired by the secretary of the Ministry of Cooperation, where overall implementation and review will be done by that specific committee here. And if you see that I told you the first review has taken place here, तो ये जो पहला रिव्यू होगा ये किसने किया होगा? ये नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने किया है, जिसको चेयर किसने किया था? सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेशन. Okay, so that is the important thing of this thing here, that how this scheme is actually being run here. Now my final question is how the farmers are getting the benefit here. If I go with the basic thing, let's say you are preparing for agriculture, आपको क्या पता फार्मर्स की बेसिक नीड क्या होती है? मैंने इतना कुछ प्रोड्यूस किया, मुझे स्टोरेज मिल जाए, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम है. तो they will be getting the storage here first of all. Now to create the warehouses, they need some financing facility, they need some loan facility. That is the point here, because PACS, Primary Agricultural Cooperative Societies, यहाँ पे help करेंगे, where the farmers, apart from getting storage facilities, has also been given the opportunity that they can take 70% of the loan from this PACS, Primary Agricultural Cooperative Societies. Okay, that is the important thing here. Now storage is done here. After storage, what will be the thing here? That is आपको income मिल जाएगा, income better हो जाएगा. ठीक है जी. इनकम के साथ क्या होगा? व्हेन यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज हाउसेस, गाइस, इट विल गिव यू डाइवर्सिफिकेशन आल्सो. डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्स आल्सो, डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आल्सो, डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ मेकिंग न्यू क्रॉप्स यूटिलाइजेशन, तो वो हो जाएगा. फिर क्या होगा? व्हेन यू हैव स्टोरेज हाउसेस, लॉट एंड लॉट ऑफ स्टोरेज हाउसेस, योर मैनेजमेंट चेन्स, योर प्रोडक्शंस, योर मार्केट रियलाइजेशन, ऑल दिस थिंग विल बी इंटीग्रेटेड एंड इट विल रिजल्ट इन बेटर आउटकम. प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. फिर आपके जो लॉसेस हो रहे हैं, द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, दैट विल बी रिड्यूस. ठीक है. एंड नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, दे वुड बी ऑपरेटिंग एज अ procurement center here, which means that they are getting the storage centers, but storage centers जो बन रहे हैं
उसको प्रोक्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है? इट इज बीन गिवन टू PACS, दैट इज द प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज हियर। ओके, और इसके साथ कौन से आते हैं? एज वेल एज द फेयर प्राइस शॉप्स। यू माइट हैव हर्ड अबाउट राशन कार्ड्स। हमें राशन मिलता है, फ्रॉम वेयर वी गेट द राशन? फेयर प्राइस शॉप्स। और फेयर प्राइस शॉप्स तो सबसे बेटर चीज है। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो आपने पता होगा, आपने बहुत बार ये चीज लिखी हुई है दैट इन फेयर प्राइस शॉप्स देयर शुड बी मैक्सिमम, मतलब फेयर प्राइस शॉप में स्टोरेज हाउस बनाओ ताकि आपकी जो डिलीवरी है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, कम हो जाए एंड डिलीवरी कुड बी मेड बेटर, फार्मर्स कुड अर्न मोर इनकम। तो ये चीज यहां पे भी की गई है। Cost incurred in transportation would be saved. PACS would be procurement. Fair price shops would be procurement centers here. So this is how this scheme is being designed in terms of keeping the storage as the main thing. जो main issue आता है कि हमारे पास storage नहीं है और बड़े-बड़े storage houses हम बनाना चाहते हैं from the lower level here. ठीक है? Now let's quickly look at the questions that we have discussed here. सबसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, that is this thing here. Ministry of Agriculture नहीं है, Ministry of Cooperation is a thing here. So which means my this question second statement is wrong है, बाकी दोनों सही हैं। ठीक है, सेकंड गलत है और फोर्थ गलत है क्योंकि यहां पे 1 ट्रिलियन है ना कि 2 ट्रिलियन है। ओके, सो दैट इज व्हाई माय आंसर विल बी 1 and 3 here. Let's talk about this thing here. Absolutely right. Storage capacity is 500 to 2000 metric ton. Farmers can store their produce in godowns constructed at PACS. Absolutely right here. The plan includes the integration of the PMFME. बिल्कुल सही है. PACS will be only operating as a procurement agency. That is wrong here because we have just discussed along with PACS we have fair price shops also that will be helping as a procurement agency here. So that is why here again my answer becomes 1, 2 and 3 will be my answer here. Okay, so first scheme is clear. अब प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स द सेकंड स्कीम ऑफ द डे, दैट इज द स्कीम इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज look at the question, tell me the answer on this thing. You have the screen in front of you. Which of the following statements are correct with regards to farmer produce organization? ठीक है जी, चलिए जी फटाफट बताइए व्हाट शुड बी द आंसर हियर। ठीक है, एंड गाइस प्लीज बी, बिकॉज ये वीडियो रिकॉर्डेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉज आगे बढ़ते रहो, नहीं, आपको खुद देखना है, आंसर सॉल्व करना है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है विद रिगार्ड्स टू फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। सो द स्कीम्स आर कि कौन सी मिनिस्ट्री ने दिया है, कितने कब लॉन्च हुई है, SFAC क्या करेगी, कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, टोटल बजट स्कीम का कितना है, ये क्वेश्चंस हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑल ऑफ द अबव। अगर सबका आंसर ठीक है तो वेरी गुड, नहीं है तो देखते हैं क्यों आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट इन करेक्ट है, पूछा गया है NCDC जो है वो एक्सक्लूसिवली प्रमोट करेगा FPOs इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। मिनिमम नंबर ऑफ फार्मर्स 200 हैं। ठीक है जी, FPOs will be promoted one district one product scheme for specialization part here. Financial outlay for the credit guarantee is 2500 crore rupees और scheme mandates करता है that one woman should be member of the board of directors here. So we have to see the incorrect statement here. Answer will be option number 2 and 4. But why it's the answer? For that we have to see the scheme first. Let's understand the scheme now. Farmer Produce Organization. Again, let's look at the meaning first. That is formation and promotion, which means now if I go with the name, first of all there is a farmer produce organizations तो होंगी, ठीक है, एक FPO है। पहली बात है ये how it will be formed. For that there is an eligibility criteria here. Number of members will be there. Eligibility needs to be remembered here. ठीक है जी, फिर आता है promotion, which means there should be some sort of initiatives government is taking so that these FPOs should be promoted here. But my question first comes in my mind is why actually we need farmer produce organization. जैसे कि फूड ग्रेन्स तो हमारी प्रॉब्लम थी, FPOs क्यों चाहिए हमें? FPOs इसलिए चाहिए guys because if we have organizations that can help in generating more income, that can help the farmers in getting loans, अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन जाएगी तो लोन जल्दी मिल जाएगा। थर्ड पार्ट क्या है? इट विल हेल्प द फार्मर्स इन मार्केटाइजेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स,
क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग बेटर हो जाएगी, आप इकट्ठे लोग इतने मिल के बैठे हो तो बेटर कर पाओगे काम। दिस इज हाउ, दैट इज हाउ वी रिक्वायर्ड फार्मर प्रोड्यूस, ये रीजन है हमें जो चीज चाहिए। अब ये न्यूज में क्यों थी? न्यूज में इसलिए थी क्योंकि एक फार्मर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड सीसीएससी स्पेशल पर्पस व्हीकल ने एक एग्रीमेंट साइन, इसका नाम है कन्वर्ट एफपीओ रजिस्टर्ड अंडर फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन इनटू द कॉमन सर्विस सेंटर्स। तो एफपीओ को उन्होंने बोला हम आपको कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू बना देते हैं, ठीक है जी, टू हेल्प देम डिलीवर सेंट्रिक सर्विसेज। काइंड ऑफ प्रमोशन इज डन हियर, but first of all we need to understand how this scheme has started and who are the prominent players who will be helping in forming as well as promoting this farmer produce organizations. Now first of all, this scheme got started in the year 2020 and its ministry is Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, ठीक है जी। अब आता है कौन कौन यहां पे हेल्प करेगा। So the implementation agencies are these. One is SFAEs, that is Small Farmers Agribusiness Consortium. Second one is your National Cooperative Development Corporation, NCDC. अब यहां पर देखो क्या दिया जाता है, दो चीज समझो। आपने पहले एग्री बिजनेस यानी कि टू फॉर्म FPOs अंडर कंपनीज एक्ट, यू नीड कॉपरेटिव्स अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ एनी स्टेट, सो NCDC इज देयर, ठीक है जी, टू बी रजिस्टर्ड अंडर एनी कॉर्पोरेट सोसाइटीज एक्ट, उसको प्रमोट करेगा। नाबार्ड विल फॉर्म एंड प्रमोट दी FPOs, नाबार्ड भी हेल्प करेगा बिकॉज इट्स अगेन वर्किंग ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। देन कम्स योर नेक्स्ट थिंग, state and union territories has also been given a provision here that they can also create their own implementing agency for running this specific scheme here, ठीक है। सो इनिशियली ये स्कीम जो थी वो 23-24 तक आई थी, बट उसको बाद में एक्सटेंड कर दिया गया था 27-28 तक। तो इनिशियली आप जब देखोगे तो पहले क्या था, हमें 10,000 FPOs बनाने हैं इन दी 5 years, दैट वाज द इनिशियल एम ऑफ द स्कीम व्हिच लेटर ऑन गॉट एनहांस्ड हियर। नाउ द थिंग एज आई वाज डिस्कसिंग विद यू इज व्हाई वी एक्चुअली नीड, सब आप देखना जो चीज मैंने आपको बताई है वही चीज है। क्या था? होलिस्टिक एंड सपोर्टिव इकोसिस्टम। सो यू विल गेट अ होलिस्टिक सपोर्टिव इकोसिस्टम, ठीक है जी, पहले तो ये बनाना भी पड़ेगा और आपको चाहिए भी होलिस्टिक इकोसिस्टम। होलिस्टिक इकोसिस्टम से क्या होगा, क्योंकि इट विल एनहांस द प्रोडक्टिविटी, दैट्स व्हाट आई एम डिस्कसिंग। एनहांस प्रोडक्टिविटी कैसे होगा? कॉस्ट इफेक्टिव होगा, सस्टेनेबल रिसोर्सेज यूज होंगे, हायर रिटर्न्स विल बी गेटिंग एंड देयर विल बी द मार्केट लिंकेजेस आल्सो व्हिच विल हेल्प इन गेटिंग द हायर रिटर्न्स for the organization also as well as for the farmers also, ठीक है जी। बट ये भी आपको करना पड़ेगा, that is for promotion also, that is for the formation you need also. Then is because guys these are farmers, so they need a proper hand holding, they need a proper training also, that how they have to make this organization and how they have to run these organizations. So that is coming here known as hand holding. So hand holding will be provided up to 5 years, which means पहले 5 साल के लिए गवर्नमेंट इज सेइंग वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच विल बी हेल्पिंग यू, कि आप सीख जाओ 5 साल में, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होगा, जब आप सीख गए तब आप किस पे काम करोगे? यू विल बी वर्किंग नाउ ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, capacity building, then you will be working on agriculture, entrepreneurs will be created here, skills will be generated here, so that we could have an economically viable and self-sustaining agriculture entrepreneurs who could work in promoting agriculture. That is how we have designed this scheme. तो objective का मतलब हम करना क्या चाहते हैं, अब करेंगे कैसे, उस पे आते हैं, that how we are going to work here. First of all, the question comes is who is actually trying, who will be giving the money here. Money is already, money सारी की सारी कौन दे रहा है? Central government दे रहा है, because it's a central sector scheme here. Now comes, when I'm creating a farmer produce organization, I should remember, I should be having some specific rules here. For example, if you create a company, आपने कंपनी चेक पढ़ा होगा तो उसमें MOM आता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी आता है। MOM में बताते हो ना कि कंपनी क्या करेगी, वैसे ही फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन में अब कौन आएगा, कितने बंदे आएंगे, हाउ द स्ट्रक्चर विल बी सेट अप हियर, दिस कम्स अंडर द एलिजिबिलिटी पार्ट हियर, दैट हु इज हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, if I talk about the members here, it says minimum members should be 300 in the plain area, that should be 100 in case of hilly area, that is minimum, इतने चाहिए. फिर
the members is here, minimum 50% shareholders should be related to small, marginal and landless tenant farmers, which means this is an important thing. You might have heard about agriculture census, and if you are talking about नाबार्ड वाले बच्चों ने एग्री सेंसस पढ़ा हुआ है तो आपको सबसे पहले एग्री सेंसस को भी रिवाइज करना है, फ्रॉम वेयर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड स्मॉल, मार्जिनल और लैंडलेस फार्मर्स यहाँ पे कौन से हैं, तो उनको इंक्लूड किया गया। 50% दे शुड बी द मेंबर हियर। मोटा मोटा 150 वो भी हो सकती हैं, या उससे ज्यादा होंगे, अगर 300 है तो 150 होंगे, ज्यादा है तो उससे ज्यादा हो जाएंगे, बट 50% इनके पास होगा। Then comes the important thing in terms of ownership, because it could be a problem here कि zamindars will come and they will take the whole ownership. No, for that purpose the government decided that is the maximum shareholding by any one member cannot be more than 10%, so that किसी एक बंदे का होल्ड ना बने, तो बोला गया one member shareholding will be 10% here. Now, in terms of women participation, it is being said that in terms of board members, there should be minimum one woman member. So, gender equality भी हो गया, एक हिसाब से women participation भी हो गया, that minimum one woman member should be a part of the board of directors or the governing body for the farmer produce organizations. So, I hope this eligibility criteria is clear. Now, let's talk further on. जो मैंने आपको बोला था कि ये स्कीम 2027-28 तक एक्सटेंड कर दी गई थी, और उसके बाद 24-25 के बाद अप्रोक्सीमेटली 2369 करोड़ रुपीस किए गए थे, जिसमें टोटल कितना था हमारा 6865 करोड़ रुपीस हियर। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट इज how the training, that is because we have talked about hand holding, so how the hand holding will be provided here and how the financial assistance will be provided here. Now guys, for the hand holding, the organization is CBBO, cluster based business organizations will come forward and will provide training to the farmer produce organizations for 5 years. और हमने क्या पढ़ा था, for initial 5 years they should be trained. That is the first thing here. Second comes the thing here, that is the Department of Agriculture and Farmer Welfare will allocate the clusters, because these are the agencies CBPOs. अब इनको भी तो, अगर मैं एक एजेंसी हूं, I said कि okay I will train them for 5 years, but whom I will train, how I will know किसको train करना है, that is where Department of Agriculture and Farmers Welfare comes. They will help us in basically allocating the clusters or states to implementing agencies, जो आगे क्या करेंगी, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगी। गेटिंग, वी हैव एन, हम इंप्लीमेंटेशन को बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई अब आप सीबीपीओस बना दो और इनको ट्रेन करना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट थिंग हियर, that is in terms of normal thing. अब cluster based business organizations require some financial training, financial amount also, so they will be getting a financial assistance of 25 lakh rupees here. 25 lakh rupees की इनको financial assistance government provide करती। Then comes in terms of cooperative sectors. So for cooperative sectors, we have an exclusive organization, that is NCDC, National Cooperative Development Corporation, is exclusively focusing on promoting the farmer produce organizations in the cooperative sector here. Exclusive promotion होगा। फिर क्या होगा, जब आपने, this is how the FPOs will be promoted and hand holding दी जा रही है। Now in terms of how this farmer produce organizations, because हम चाहते हैं all over India में development हो, so that is where the government says 15% of FPOs at least should be set up in an aspirational district here, where it should be that there should be one farmer produce organization is constructed in each block. Aspirational district के each block में एक FPO हो। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इनको स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए। FPOs will also be promoted under the one district one product program, where they will be helping in kind of promoting, executing the processing, marketing specialization clusters बन जाएंगे। They are also being promoted under the one district one product here, so that farmers their kind of आप एक ऑर्गेनाइजेशन को पूरा स्ट्रक्चर दे रहे हो। यार अगर आप कोई ऐसे एरिया में जहाँ पे फिशरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिशरीज का काम कर लीजिए, वहां पे उसको लेके आओ, उसको प्रमोट कर दो। जरूरी थोड़ा ना हर जगह पे आपको वीट और राइस ही प्रमोट करना है। इट इज रिगार्डिंग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वहां का प्रोडक्ट प्रमोट कर दो,
वहां का एग्रीकल्चर प्रमोट कर दो. दैट इज द थिंग हियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल असिस्टेंस हियर. सो आई टोल्ड यू वन असिस्टेंस ऑफ 25 lakh for the CBBOs here. Other than that, we have a second assistance that is for the 33 lakh rupees here, which is divided into two parts. Here, up to 18 lakh will be given for a period of 3 years. ठीक है, 33 लाख की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, जिसमें से 18 लाख तो दिया जाएगा फॉर इनिशियल 3 years. Second is equity grant here. Here is a trick here. It is said for the remaining 15 lakh, the government is providing equity grant that is rupees 2000 per member. अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, 2000 पर मेंबर है, मैक्सिमम 15 लाख है. अगर आपके मेंबर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे 300 मेंबर ही हो जाते हैं, ठीक है, सो 2 3 6, सो दैट इज हमें फिर इतना अमाउंट मिलेगा 6 लाख रुपीज, तो 15 नहीं मिलेगा. दिस इज अ यूनिट मेंबर हियर, किस मैक्सिमम 15 lakh, but the point is here 2000 per member will be given here. So this is the main thing in this specific grant of 33 lakh rupees here that is provided under this specific scheme for creating farmer produce organization. I told you with regards to CBPOs, ठीक है जी, 25 lakh will be given here per FPO, ठीक है. Then credit guarantee up to rupees 2 crore is given in terms of project loan. If the farmer produce organizations want a loan here, क्रेडिट गारंटी वहां पे 2 करोड़ तक की दी गई है. एग्जिस्टिंग एफपीओ अगर इंडिया में है, दे कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट्स हियर, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, बट द ओनली कंडीशन इज दे शुड नॉट हैव अवेल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम बेनिफिट. दे हैव ऑलरेडी अवेल्ड द बेनिफिट, फिर उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा. गवर्नमेंट ने इनिशियली ये भी बोला था कि भाई हम लोग 1100 न्यू फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाएंगे थ्रू द मेंबर्स ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज. पीएसएस अभी पढ़ा था कहां पे, स्टोरेज के लिए. तो देखो पीएसएस कितनी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इस पे नाबार्ड ने पिछली बार क्वेश्चन पूछा है पीएससीएस के ऊपर. सो यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ पीएससीएस आल्सो, बिकॉज़ नाबार्ड हैज आस्क्ड यू क्वेश्चन इन फेज 2 एग्जामिनेशन. ठीक है, अब ये चीज हो गया. अब देखो स्ट्रेंथनिंग के लिए आपने पीएसएस मेंबर्स को भी ले आए. अब आते हैं क्रेडिट गारंटी फंड. There will be a special credit guarantee fund of 1500 crore rupees that is being created for the farmer produce organization. किस किसने क्रिएट किया है? One is NABARD, second one is National Cooperative Development Corporation, that is NCDC. So NABARD, it will be Nab Shankar, the subsidiary of NABARD, who will be helping in providing 1000 crore, where equal contribution is made by NABARD and the Department of Agriculture and Farmers Welfare. ठीक है जी, यहां पे भी 500 करोड़ रुपीस दियो, बट यहां पे भी कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एज वेल एज एनसीडीसी बोथ विल बी कंट्रीब्यूटिंग हियर. सो इट्स नॉट अ फुल कंट्रीब्यूशन, यहां पे डिपार्टमेंट भी, गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है. सो आई होप नाउ यू गॉट एन आइडिया दैट हाउ दिस एफपीओस विल बी कंस्ट्रक्टेड एंड हाउ दे विल बी प्रमोटेड हियर. सो लेट्स क्विकली गो टू द क्वेश्चन एंड लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ अगेन. चलो, पहला क्वेश्चन क्या था कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है? नोडल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, स्कीम 2020 में लॉन्च हुई, बिल्कुल सही है. एसएफएससी भी सही है. स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 33 लाख रुपीस, बिल्कुल सही है, जिसमें से 18 लाख मिलेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. एब्सोल्युटली राइट हियर. एंड टोटल बजट इज 6865 crore rupees here, which means all of the above is the right answer here. Then let's talk about second question. अब देखो हमने पढ़ा था एफपीओस minimum 100 in hilly and they are 300 in plain area. So which means this statement is wrong. That is again right, because यहां पे कीवर्ड था exclusively. बिल्कुल सही है. NCDCs will help exclusively in promoting the farmer produce organizations in the cooperative sector here. Then comes this thing here. FPOs will be promoted through one district one product. बिल्कुल सही है. For specialization and marketing बिल्कुल सही हो जाएगा. Financial outlay as we have discussed is not 2500, it is 1500 crore rupees. So this is again wrong. 1500 में से 1000 नाबार्ड का था, 1000 नाबार्ड and 500 that is NCDC. Here again they will be helped by Department of Agriculture and Farmers Welfare also contributing 50% in both these funds. Equal contribution होगी. तो ये चीज भी यहां पे याद रखनी है that it's not solely they are funding, this is the funding by Agriculture and Farmers Welfare
ऑल्सो। सो क्लियर द सेकेंड स्कीम बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जी ये वाली भी। अब आते हैं आगे इस स्कीम के बाद थर्ड स्कीम ऑफ द डे, दैट इज योर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम बिकॉज व्हेन आई टॉक अबाउट न्यू इंडिया लिटरेसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे वो फाइनेंशियल लिटरेसी है चाहे वो न्यूमरेसी लिटरेसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे ये पूछना है, आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहां पे इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्कीम हियर। फटाफट में, नहीं आता कोई इशू नहीं, ट्राई करो एक बार, ठीक है, कि क्या था आंसर। ठीक है जी, आंसर पूछा, पहला पूछा मोटो, फिर पूछा फंडिंग, फिर पूछा है कि नेशनल लेवल पे कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, फिर पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर पूछा गया है इट डज नॉट प्रायोरिटाइज द डिस्ट्रिक्ट्स विद लेस लिटरेसी रेट्स लेस देन नेशनल एवरेज। कैसा है, कॉमनली सोचो, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप सोचो ये स्टेटमेंट के बारे में, आपको लगता है कभी ऐसा गवर्नमेंट करेगा कि जहां पे लिटरेसी रेट कम है बोले कि उसको प्रायोरिटाइज ही मत करो? तो इसका मतलब फिफ्थ तो पहली पक्का गलत है ना, फिफ्थ तो गलत है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, बाकियों में से कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया है, अब ये देखो फंडिंग पैटर्न हियर, नाउ यू हैव टू थिंक ऑन दिस पॉइंट, फंडिंग पैटर्न, कि क्या यार वाकई ही ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या फिर स्टेट की भी कंट्रीब्यूशन है? तो ये थॉट करो, इसका आंसर देखो। आंसर यहां पे एक्चुअल में वैसे 2 और 5 है, बट क्यों है अब इस पे आते हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन ऑन द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इट वाज अनाउंस्ड इन 2022, लॉन्च हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द नोडल मिनिस्ट्री हियर। इट एम्स टू अचीव 100% लिटरेसी बाय 2030। टोटल फाइनेंशियल आउटले बताया गया है और पूछा गया है प्रोग्राम विल बी इंप्लीमेंटेड एट अ हाइब्रिड मोड अलाउइंग स्टेट एंड यूटीज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑफलाइन ऑनलाइन और कंबाइंड अप्रोचेस हियर। फिर माइंड खनका कि यार अब क्या होगा यार, कि यहां पे स्टेट और यूटीज भी आया है, तो फिर आपको ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में देखना है कि क्या आंसर हो सकता है। यहां पे आंसर है सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं। व्हाई? बट लेट्स टॉक अबाउट द स्कीम फर्स्ट। एज आई ऑलरेडी सेड, क्वेश्चन कर लिए, अभी तक क्वेश्चन करना मुझे आते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं आते समझोगे है क्या। नाउ अगेन गो टू द नेम ऑफ द स्कीम, न्यू इंडिया लिटरेसी program. We are talking about New India, and for that New India, we want that the people should be literate enough. उनको समझ आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप AI की बात कर रहे हो, आप कुछ भी बात करते हो नेशनल लेवल पे, तो आपको बेसिक्स आना चाहिए यार। वही इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है। इट वॉज अर्लियर नोन एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। गेटिंग दिस पॉइंट? लर्निंग कौन सी है? इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटीज, हर बंदे को। अब इसमें हुआ क्या है, लद्दाख ने 95% लिटरेसी अचीव किया इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल, एज अ फुल्ली फंक्शनल लिटरेट यूनियन टेरिटरी थ्रू दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम उल्लास के अंदर। नाउ द पॉइंट हियर इज हाउ दिस स्कीम इज वर्किंग हियर। सबसे पहले कब आई थी? 2022 में अनाउंस हुई, लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने थी। नाउ इट इज इंप्लीमेंटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल द यूनिट इज गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। ठीक है, कहां पे हो रही है? गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। देन इज नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी विच रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द स्कीम एट नेशनल लेवल। अब आ जाते हैं यहां पे ऊपर कि करना क्या है। मैंने आपको बोला वी वॉन्ट अ लिटरेसी हियर, बट व्हाट टाइप ऑफ लिटरेसी? बेसिक थिंग्स इज, अगर मैं सबसे बेसिक बात करूं तो क्या होता है कि भाई आपको मैथ आता है। You might have seen in lot and lot of newspapers in the past few years. One common thing is 8th क्लास के बच्चे को मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आया, 9th क्लास के बच्चे को फॉर्मूला ही नहीं पता भाई ये क्या चीज होती है। होता है ना, न्यूज पढ़ते हो ना, you read this kind of news. People are not able to understand the basic thing. This is where the scheme is hitting first. We want to impart the foundational literacy and numeracy, where we want that people should be able to read, write and do basic numeracy, basic addition subtraction, algebra और जुबरा नहीं, basic addition subtraction तो कर लें, पता तो हो। After the foundational literacy, we want to impart the critical life skills. Critical life skills means they should have a knowledge about health facility, they should have a knowledge about financial literacy, digital literacy. आजकल डिजिटल इंडिया का जमाना है, and there are majority of people who gets frauded on that thing. उनको पता ही नहीं चलता, बिकॉज द प्रॉब्लम इज वी डू नॉट हैव फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी हियर। अगर डिजिटल लिटरेसी हो जाएगी, लीगल लिटरेसी होगी, तो ऑब्वियसली बात है द पीपल विल
गेट टू नो मोर, दे विल बी मोर अवेयर, तो ये होगा यहां पे। एंड दिस इज विच टाइप ऑफ थिंग्स वी वांट टू इंकलकेट, बट वो होगी कैसे, इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग वोकेशनल स्किल्स। हम इसके लिए वोकेशनल स्किल्स भी करवाएंगे, विच इज इन टर्म्स ऑफ कॉन्टिन्यूस लर्निंग टू द पीपल हियर, ओके। एंड देन एक चीज क्या करेंगे हम लोग, डू वी बी इम्पार्टिंग बेसिक एजुकेशन हियर ऑल्सो। यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस, कि हम लोग हर लेवल, फाउंडेशनल है सब कुछ, उसके लिए क्या है, सबसे पहले बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, फिर हम लोग कॉन्टिन्यूस एजुकेशन विच मींस लाइफ लॉन्ग लर्निंग, स्किल्स हो गया, एडल्ट एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, कुछ ना कुछ कराते रहेंगे, दैट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। नाउ द थिंग इज हाउ इट्स इंप्लीमेंटेड, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसका मतलब ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, 100% central government sponsored scheme, is not a centrally sector, it's a central sponsored scheme here. Now comes the next important thing here, अब स्कीम कैसे इंप्लीमेंट होगी, ठीक है जी। फंडिंग पैटर्न, if I talk about, it's a normal funding pattern guys. Now here I give you a very basic thing here guys. Generally if you talk about any centrally sponsored scheme ना, आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्या होता है, फंडिंग पैटर्न यही होता है, 60:40 in terms of center and state, normal, north eastern states, hilly states 90:10, यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर 100% बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यही फंडिंग होती है, बट किसी किसी में चेंज होगा। एंड आई गिव यू अ ट्रिक हियर हाउ टू रिमेंबर दिस थिंग, डू नॉट गो ऑन दिस फंडिंग पैटर्न कि ये सारा याद करने बैठ जाओ, आप सिर्फ याद करो द स्कीम्स विच हैव द डिफरेंट फंडिंग पैटर्न, आफ्टर दैट ये ना याद करना, इनको याद करो, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। दिस इज द ट्रिक दैट यू कैन यूज हियर, ओके। नाउ दिस स्कीम इज इंप्लीमेंटेड टिल 2026-27 है विद द मोटो ऑफ जन जन साक्षर। साक्षरता का मतलब होता है कि आप चाहते हो पढ़ाना, एजुकेशन, सो दैट इज जन जन, हर जगह पे एजुकेशन, ठीक है। एंड इट इज हैविंग अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ 1037, जिसमें से 700 करोड़ रुपया सेंटर प्रोवाइड कर रहा है एंड 337 करोड़ रुपीज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट्स हियर। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया इज सच अ ह्यूजली पॉपुलेटेड कंट्री। क्या आपको लगता है कि एकदम आप एजुकेशन दे पाओगे? नो, वी नीड टारगेट फॉर दैट। सो दिस इज हाउ द स्कीम इज बीइंग वर्किंग, बट विद सम स्पेसिफिक टारगेट्स। टारगेट क्या किया गया, वी आर टारगेटिंग 5 करोड़ लर्नर्स, 5 करोड़, कैसे, एट द रेट ऑफ 1 करोड़ पर ईयर। हाउ, with the help of online teaching, learning and assessment systems here, which means training here will be imparted in online manner. To whom? First, non-literate, non-numerate person, that is 15 years and above. टारगेट हमारा सब कुछ था, क्रिटिकल लर्निंग बता दो, बेसिक एजुकेशन बढ़ाओ, न्यूमरेसी बढ़ा दो, बट पहले क्या कर रहे हो, कवरिंग द नॉन लिटरेट एंड नॉन न्यूमरेट पर्सन इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है जी। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज दे आर दोज पर्संस हु कुड नॉट गो टू स्कूल, दे वर दोज पर्संस हु हैव नॉट गॉन टू स्कूल फॉर अटेनिंग देयर एजुकेशन। सो सबसे पहले उनको समझाओ तो सी, फिर आगे जाओगे ना। दिस इज द थिंग हियर, एंड वी टारगेट इज वी वांट दैट दे शुड अचीव 100% लिटरेसी बाय 2030, दैट इज द थिंग हियर, ठीक है। फाउंडेशनल न्यूमरेसी कर रहे हो यहाँ पे, कहते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हियर। Now comes the second important thing. As I told you, it's a lifelong learning for all. So the objective here is not about adult education, it is education for all here, and it is in aligned with the National Education Policy of 2020, जहां पे अब ये करें क्या, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के दीक्षा प्लेटफॉर्म के थ्रू हाउ द ट्रेनिंग विल बी imparted, that will be help of with the help of volunteerism. So volunteers will come and they will impart this training, ठीक है जी। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी यार, थिंक हियर, जब मैंने स्कीम डिस्कस की थी, वो सेड फोकसिंग ऑन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। सो मैंने टॉक अबाउट गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, हाउ विल दे बी हेल्प, वो क्यों आएंगे, क्योंकि आपने बोला ऑनलाइन टीचिंग करवानी है, देन व्हाई सर दीज आर रिक्वायर्ड। नाउ अगेन थिंक बैक ऑन दैट थिंग, आई टोल्ड यू ऑनलाइन टीचिंग दी जाएगी, बट फॉर ऑनलाइन टीचिंग यू नीड एन इंफ्रास्ट्रक्चर जहां से दोगे, या फिर अगर कोई बंदा आ रहा है, इफ देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वांट टू गो, किसी ने इंटरनेट देखा ही नहीं तो वो कैसे लेगा, उसको कैसे पढ़ाओगे? यू गाइस तो आर सो मच अवे ना, यू कैन गो टू द इंटरनेट, यू कैन वर्क, बट हाउ कैन दोज पीपल वर्क? तो गवर्नमेंट स्कूल्स को इसलिए लेके आया गया कि भाई आप एक तो वहां पे उनको ले आओ, स्कूल्स में बिठा दो किसी लैब में और वहां से उनको पढ़ाते रहो, ठीक है ना।
सो दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर हियर, ठीक है जी। दैट इज स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं, देखो तो यहां पे तो ट्रेनिंग दी जाएगी, अब देगा कौन? फर्स्ट ऑफ ऑल वॉलंटियर्स विल इंक्लूड स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है जी, दैट विल बी क्लास 5th एंड above here. Then it will also be including the teacher education institutions, ठीक है जी, टीचर्स हो जाएंगी। फिर आपके वॉलंटियर्स कौन से होंगे? एक टीचर्स होगी, एक हो गए लिटरेरी वर्कर्स। सो दे आर बेसिकली द वॉलंटियर्स हु विल बी वॉलंटियरिंग हियर, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट फंडा क्या याद रखना है? मैंने बोला स्कूल, तो देखो ये क्या है, हाइब्रिड मोड में इंप्लीमेंट किया गया है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है। और देखो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो मैं पढ़ रहा हूं, देखो यहां पे लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं सामाजिक चेतना केंद्र, दे विल बी वर्किंग सामाजिक चेतना केंद्र, इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू बी डेजिग्नेटेड आफ्टर द वर्किंग आवर्स। इसका मतलब क्या है कि व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर काइंड ऑफ इंपार्टिंग द ट्रेनिंग ऑल्सो, बट वो कर कैसे रहे हो? इंस्टीट्यूशन स्कूल्स में बोला है कब? आफ्टर वर्किंग आवर, ठीक है जी। एंड यूटिलाइज फॉर दोस हु आर विदाउट एक्सेस टू डिजिटल गैजेट्स, गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ हियर यू आर ब्रिंगिंग दिस पीपल जिनके पास कोई गैजेट ही नहीं है, तो भाई आप आओ वर्किंग आवर्स के बाद, वहां पे आपकी क्लासेस लगाई जाएंगी। This is the thing, that is infrastructure will be created in terms of government aided schools. Now come to this part here, hybrid mode में हो जाता है, देखिए flexibility होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन या फिर कंबाइंड अप्रोचेस में कर सकते हैं। बट देखो लिखा गया था इनिशियली OLTS के थ्रू देंगे, बट हाँ गवर्नमेंट ने बोला हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मोड भी चले जाते हैं, ठीक है जी। अब आता है हु इज द मेन टारगेट हियर। प्रायोरिटीज इन टर्म्स ऑफ बेनिफिशियरीज विल बी गिवन टू द गर्ल्स, SC, ST, minorities, Divyangs will be here, women will be here, marginalized people, construction workers, laborers, which is kind of those people जिनके पास बहुत ही ज्यादा बेसिक स्किल्स है ही नहीं। ऑलमोस्ट आप देख रहे हो वो सभी वही लोग हैं। Now in terms of this is what where we are targeting those people first. Then is the areas how we are targeting here. Targeting areas कौन से कौन है? सबसे पहला आता है जी हर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ऑल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, districts with literacy rate less than national average, district with female literacy rate less than 60% as per 2011 census, then large minority population, because आप देखो यहां पे minorities are among the beneficiaries, priorities beneficiaries here, girls are beneficiaries, so girls के लिए 60% जहां से लिटरेसी रेट कम है वो आपने कर दिया, ठीक है जी। फिर आ जाता है एजुकेशनली बैकवर्ड, लेबरर्स, नोमैड्स, मार्जिनलाइज्ड पीपल। सो यू कैन सी हियर जहां पे आपकी प्रायोरिटीज हैं उसी से ही आपकी लोकेलिटीज निकल के आई हैं, ठीक है। नाउ गाइस वी हैव टोल्ड यू हमारा ऑब्जेक्टिव है 15 प्लस अबव, एज 15 एंड अबव में हम नॉन न्यूमरेट और नॉन लिटरेट पर्संस को टारगेट कर रहे हैं, एंड वी वांट टू अचीव 100% लिटरेसी बाय 2030. But is it feasible on first part? Can it be done on one go? No. For that purpose, government what has done is एज cohorts बनाएंगे। सबसे पहला 15 to 35, ठीक है। That is first we are targeting the age group of 15 to 35, and after that we will be targeting the age group of 35 and above here. So this is about that when the scheme got implemented, initial level पे आप 35 years वाले बंदे को ही पहले लेके आ रहे हो। Then I talked to you about infrastructure here, ठीक है जी। How the learners, volunteers can register themselves, they can register themselves through the help of Ullas app here, ठीक है जी। And then there will be a performance level, so performance grading index for state or UTs will show the performance to implement the scheme and achievement here, which means you are doing voluntary, you are providing them a training, but उनकी performance भी तो टेस्ट होना, that will be tested by performance grading index. I hope this scheme is clear to everybody now. ठीक है, देखो मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं, रीजन यही है कि आपको स्कीम समझ आए यार। ऑब्जेक्टिव है समझना, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन के पीछे मत भागना, स्कीम समझना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। चलो जी दोबारा आ जाते हैं। फंडिंग इज 100%? नहीं जी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था फंडिंग पैटर्न क्या था, 60-40 होता है, ठीक है। इट डज नॉट नहीं, इट प्रायोरिटाइज ऑल्सो, सो सेकंड एंड फोर्थ हमारे फिफ्थ गलत हो जाती हैं, ठीक है जी। और यही पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, देखो यहां पे ये सही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, 100% लिटरेसी का टारगेट था, टोटल फाइनेंशियल भी सही है, और प्रोग्राम इम्प्लीमेंट जो हाइब्रिड मोड है, तो ये आंसर बन जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर हियर, दैट्स ऑप्शन नंबर ई हियर, ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट दिस थिंग। अब देखो क्वेश्चन आप दोबारा देखना, खुद सॉल्व करना, बाद में घर जाके दोबारा करना एक बार जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बट पहला पॉइंट समझना यार,
अगर आपको समझ आ जाता है ना, फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अगर नहीं समझ आया उलझ जाओगे फिर, ठीक है। चलो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम दैट इज अगेन सीन इन न्यूज, जो है अग्निपथ स्कीम, ठीक है जी। अब आपने बहुत कॉमनली एक न्यूज सुना होगा पार्लियामेंट में, अग्निवीर बंद कर दो, अग्निवीर बंद कर दो। फंडा यार क्या है, अग्निवीर नहीं है, स्कीम का नाम अग्निपथ है। जिनको एक्चुअली बेनिफिट दिया जा रहा है वो अग्निवीर हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन इज आस्किंग यू फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। क्यों है समझते हैं अभी, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट हियर, मंथली पेमेंट 30,000, उसके बाद फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट है, एग्जिट के बाद आपको 12.5 लाख का निधि पैकेज मिलेगा, और अग्निवीर को 44 लाख की नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस मिलेगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 एंड 3 इज माई इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी। क्यों है, लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग बाय अंडरस्टैंडिंग द स्कीम हियर। अग्निपथ, so this is a very well versed scheme that was launched in 2022 with a very prominent motto कि हम लोग आपके आर्मी में बहुत ज्यादा यूथ चाहते हैं, we want youth to be part of army, so for that purpose government launched 2022 Agnipath scheme, which is now the worker, the persons who are getting the benefits are known as Agniveers। तो वो इसलिए अग्निवीर के नाम से भी चलने लग गया, बट अग्निपथ स्कीम उसका नाम है, ठीक है जी। और इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नाबार्ड ने भी पूछा है, आरबीआई ने भी पूछा है। सो बोथ दिस एग्जामिनेशन दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ऑब्जेक्टिव हियर इज, एज आई टोल्ड यू, यूथ प्रोफाइल, मोटिवेट द पैट्रियोटिक मोटिवेशन, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इशू है कहां पे। इशू देखो कहां पे, सबसे पहले एवरीवन इज एलिजिबल, सो व्हिच मींस ऑल नेशनल्स आर एलिजिबल if they are passing the medical standards as per the army rules, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड वही है। एज ग्रुप है सबसे पहला, एज लिमिट इज 17.5 to 21 years। नाउ व्हेन दिस स्कीम इनिशियली गॉट लॉन्च ना, तो इसकी एलिजिबिलिटी एज 23 कर दी गई थी। नाउ मेनी पीपल हैव दिस डाउट इन माइंड कि सर इसका एलिजिबिलिटी पहले ज्यादा था, अब कम कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, एलिजिबिलिटी शुरू से 21 ईयर ही था, दैट इज इट वाज 17.5 to 21 years ओनली। ओनली पॉइंट वाज दैट ड्यू टू कोविड टाइमिंग इट गॉट, कोविड पीपल के लिए थोड़ा सा एज बढ़ा दिया गया, तो इसलिए उसको 23 ईयर्स किया गया था इनिशियल ईयर के लिए। दैट्स फॉर इनिशियल ईयर। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, दैट व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम और व्हाई देयर इज अ हल्ला अराउंड दिस अग्निवीर स्कीम हियर। पॉइंट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल्स विल बी नोन एज अग्निवीर एंड दे विल गेट अ डिस्टिंक्ट रैंक इन आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है जी, different from the existing ranks, which means they are not getting major सूबेदार ranks, they are getting the rank of अग्निवीर, उनको अलग रैंक मिल रहा है। Point is this thing known as engagement period, which means if you join the Agniveer scheme, you will be engaged in army only for the 4 years, and there is a provision that the total number of Agniveers that will be enrolled into the scheme here, 25% of them कैन बी इंडक्टेड इनटू रेगुलर कैडर आल्सो। सिर्फ 25% को रेगुलर कैडर में डाल सकते हो, जो कि मिनिमम 15 इयर्स की जॉब कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 15 इयर्स दे कैन डू अ जॉब हियर। दैट इज द फर्स्ट इशू ऑफ दिस स्कीम। सेकंड इज क्या है कि जितने टाइम आप जॉब कर रहे हो, यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स व्हिच आर गिवन टू आर्मी पर्सनल्स, लाइक मेडिकल बेनिफिट्स, द कैंटीन बेनिफिट्स, ठीक है जी, वो आपको भी मिलेंगे टिल योर एंगेजमेंट पीरियड। Then comes the next important thing, that is how you are giving the pays and allowances here. So for that also there is a thing here known as this thing. Government has given a fixed payment allowance here. तो ये बोला जा रहा है कि यार आपने फिक्स कर दिया है, it should be चेंज होना चाहिए, बट गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। कैसे? इनिशियली 30,000, सो बेसिकली इफ यू कैलकुलेट ना 10% का फंडा थोड़ा सा बनता है, 30 प्लस 10, 30 का 10%, 33 बन जाए, 30,000 प्लस 10% 3,000, सो 33,000, ठीक है। इसका बन जाता है अराउंड 3,300, तो यहां पे राउंड फिगर कर दिया 36,500, यहां पे 39,500 बनता है 10% करके, तो मोटा मोटा राउंड फिगर कर दिया गया है 40,000। सो दिस इज द टर्म यू नीड टू रिमेंबर, 30,000, 33, 36 एंड 36,500 एंड 40,000 इज द फिक्स कर दिया गया है फॉर दी पेमेंट्स दैट और दी वेजेस द पर्संस विल बी गेटिंग, पे जो इनको मिलेगी। देन रिस्क, हार्डशिप, ड्रेस अलाउंसेस विल आल्सो बी गिवन टिल योर एंगेजमेंट पीरियड। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर गाइस,
the money that the Agnivirs are getting here, it is being said that 30% of their monthly pay, that will be like that, 30% of their monthly pay will be deducted and will be contributed to the Agnivir corpus here. And government will also be playing a prominent here, where government says हम आपके साथ co-contribute कर देंगे. Exit pay, you will get the Sevanidhi package of 11.7 lakh rupees, which is the tax-free amount that will be given to the personnel. मतलब आप 4 साल के बाद आपको पैसा ये मिल जाएगा. ठीक है. In terms of this thing, for example, if you got, आपकी डेथ हो जाती है, so there is a non-contributory life insurance coverage of 48 lakh rupees that is given to the Agnivirs here. ठीक है. Then comes the important thing here, additional ex gratia of 44 lakh will also be given to the for the death attributed to services. तो ये तो लाइफ इंश्योरेंस हो गया, दैट्स द एडिशनल एक्स ग्रेशिया, एंड द पे फॉर अनसर्व्ड पोर्शन अप टू 4 years विल आल्सो बी देयर इंक्लूडिंग द सेवा निधि कंपोनेंट. सो दिस इज हाउ द कंपनसेशन विल बी गिवन हियर. ठीक है जी. तो अभी बहुत बच्चों ने सुना होगा कि रिसेंट एंड अग्रीवीर हैज डेथ एंड उनको शायद उनके इशू चल रहा था कि 1 करोड़ मिला, 2 करोड़ मिला. तो यार देखो ये सब कुछ मिलता है, 48 लाख, 44 लाख एडिशनल एक्स ग्रेशिया, और आपकी अगर कोई पे पढ़ी है वो भी मिल जाएगी, और सेवा निधि कंपोनेंट भी आपको यहां पे मिल जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोस थिंग्स, बिकॉज पर्सन इज गोइंग टू आर्मी एंड ही कैन गेट डिसेबल्ड ऑल्सो, बिकॉज आर्मी में कोई ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल स्वस्थ ही रहते हो. मेनी पीपल इन आर्मी गॉट डिसेबल्ड, कि कहीं वार पे गए, आप कुछ ना कुछ हो गया. तो हाउ द डिसेबिलिटी विल बी गेटिंग द बेनिफिट्स हियर? इफ द डिसेबिलिटी इज अप टू 50%, 15 लाख रुपए विल बी गिवन एज अ कंपनसेशन. 75% 25 lakh, and for 100% disability 44 lakhs will be given here. ठीक है जी. अब अगला पार्ट क्या आता है? देन इसके साथ आपकी जो भी अनसर्व्ड पीरियड है अप टू 4 years, उसका आपको फुल पे मिल जाएगा. दैट इज अगेन विद दैट सेवा निधि पैकेज विल आल्सो बी गिवन टू द पर्सन हियर. सो दिस इज अबाउट द स्कीम हियर. द मेजर इश्यू ऑफ द स्कीम इज दैट अबाउट 4 years. दिस वाज द मेन इशू ऑन दिस स्कीम हियर. ठीक है. अब आपको वो इशू में नहीं जाना है, आपको ये समझना है कि एक्चुअल में स्कीम है क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है. सो द थिंग हियर इज दे माइट आस्क योर क्वेश्चन इन बोथ एग्जामिनेशंस ऑफ आरबीआई एज वेल एज नाबार्ड हियर. ठीक है जी. तो ये हो गई हमारी अग्निवीर स्कीम, इसको भी हमने डिटेल में समझा है. अब आ जाते हैं जी, क्वेश्चन क्या था हमारा. पहला क्वेश्चन था हमारा, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 2022 सही है, 17, 17.5 से 21 सही है. एंगेजमेंट पीरियड 6 नहीं 4 साल का था. ठीक है जी. अब आते हैं यहां पे इनकरेक्ट कौन सी है. ये सही था 30,000, 33,000, 36,500 एंड 40,000 पेमेंट्स. ठीक है जी. ऑन एग्जिट ऑफ 4 years अग्नि विल गेट 12.5 नहीं 11.7 लाख. 44 नहीं 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर जो है वो मिलता है. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी 2 and 3 वाज द इनकरेक्ट हियर. Clear on this thing? Now let's move towards my next scheme for the day, that is Swachh Bharat Mission Urban 2.0. So quickly tell me about this scheme, Swachh Bharat Mission Urban 2.0. So I have brought you 3 questions on this thing. This is a very important scheme because स्वच्छता के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम कर रही है अभी. ठीक है ना. तो बताओ जी. The scheme was launched in 2021 by Ministry of Housing and Urban Affairs. The total financial outlay for the scheme is 1,41,600 crore rupees. Cities go through ODF and garbage-free city certification through the Ministry of Housing and Urban Affairs. The program includes objectives such as sustainable solid waste management and sustainable solution. Funding pattern for the urban local bodies in northeastern Himalayan state is 90% by the center and 10% by the states. So what should be the answer? ठीक है. 1, 2, 4 and 5 इसका आंसर होगा. क्यों होगा अभी समझते हैं. ठीक है. अगला क्वेश्चन फिर स्कीम के ऊपर है, आपके सामने है. पॉज हियर, टेल मी द आंसर हियर. ठीक है जी. क्वेश्चन इज आस्किंग यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ऑन द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन. स्कीम इंक्लूड्स द सेटिंग अप ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज. कंप्लीट एक्सेस दिया जाएगा. एम्फसाइज ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ 3 Rs. इट mandates the provisions of personal protective equipment and safety kits. Funding pattern for urban local bodies with 1 to 10 lakh is 33% and 67%. यहां पे आंसर बन जाएगा all of the above. अगला क्वेश्चन फिर आता है स्कीम के ऊपर, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सेंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रोजेक्ट फंड इज 80% by the center and 20% with less than 1 lakh population. Scheme covers all statutory towns. The program aims to achieve ODF free status in all cities with a population of more than 10 lakh or in all cities.
द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2014 एज अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। देखो ये तो क्लियर कट ही रॉन्ग है, बिकॉज अभी पढ़ के आए 2021 वाला सही था, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसका मतलब फोर्थ तो पक्का ही गलत है, और पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो यानी कि ये गलत हो गया। अब इनमें से मेरा कोई आंसर बनेगा। द स्कीम इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज फॉर वेस्ट प्रोसेसिंग हियर आल्सो। सो फिफ्थ भी मेरा यहां पे सही है, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा? दैट इज 1, 3 एंड 4 इज माय राइट आंसर हियर। बट अगेन वी नो द आंसर, बट व्हाई इज दिस आंसर? लेट्स अंडरस्टैंड द स्कीम हियर नाउ। देखिए जी, स्कीम का नाम क्या है? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0. The thing here was that is the government has brought up this scheme where the objective was basically on providing cleanliness. And if you're living in urban areas, guys, you might have feel that there are three basic concerns in urban areas in terms of cleanliness. सबसे पहला क्या आता है? Scientific waste management. Then we have sanitation. Sanitation in terms when I talk about here is, ठीक है, यानी कि यूरिनल्स शुड बी देयर, प्रॉपर सैनिटेशन शुड बी देयर, पब्लिक टॉयलेट शुड बी देयर। दैट्स द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, स्टिंकीनेस का इशू आता है। थर्ड क्या आ जाता है? ग्रे वाटर मैनेजमेंट। दिस इज व्हाट द अर्बन एरियाज इज बेसिकली फोकसिंग ऑन, यही आता है मेन चीज। एंड यू विल सी फर्दर ऑन इन दिस स्कीम गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन दीज थ्री एरियाज एज अ प्राइम कंसर्न हियर। ओके, सो इट्स द सेकंड पार्ट। द फर्स्ट part was launched in the year 2014, and guys the same question has been asked in the RBI grade B के स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का क्वेश्चन आ चुका है नाबार्ड एग्जामिनेशन में 2021 के आसपास। 2021 में आई थिंक क्वेश्चन नहीं आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्कीम पूछ सकता है। एंड इन योर टॉक अबाउट योर क्लीनलीनेस, स्वच्छता इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस in NABARD. And for RBI, guys, obviously sustainable development and environmental issues is again a topic, so that can also be asked here. Now the question here is, क्या है? हमें completely free of garbage बनाना है cities को। ठीक है, where I told you this is the main problem: sustainable solid waste management, sustainable sanitation, institutionalization और create an institutional capacity। यानी कि पहले दो चीजें ठीक करनी है, फिर क्या करना है? अवेयरनेस क्रिएट, यानी कि जन आंदोलन बनाइए, और फिर क्या करना है? आपको इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी क्रिएट करनी है। इट्स अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हियर एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम टू अंडरस्टैंड, गाइस। ठीक है, सो बेसिकली 1,41,600 crore rupees आर गिवन अंडर दिस स्पेसिफिक स्कीम हियर। नाउ इज दिस थिंग टू बी अंडरस्टैंड, ये नॉर्मल है दोनों। ठीक है जी, 90-10 इन नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस, 100% यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर, दैट वी डिस्कस कॉमनली। मैंने पहले भी पढ़ाया था, ये चल रहा है। बाकियों में इशू है क्या है? अब इसके लिए मैं फंडा सिंपल बताता हूं, इसको भूल जाओ अभी, इन तीनों को। ठीक है, इसको करो 1/5, 1/4, 1/3, 1। दिस इज हाउ यू कुड रिमेंबर हियर। अर्बन लोकल बॉडीज विथ then is first of all comes UTs with legislature. Okay, then comes the second thing, 10 lakh plus urban local bodies, 1 to 10 lakh, and then we have less than 1 lakh population, which means you are catering to every population here. ठीक है, पर याद ऐसे कर लेना, इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग 80, 25, 30 से ऐसे नहीं याद होगा, ऐसे कर लो। ठीक है, 1/5 80-20, 25 75, 33 67। तो आप देख रहे हो जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज लेस, देन लेस देन 1 lakh 50-50। ओके, एंड दिस इज द स्कीम हियर 2025-26 तक जो है ये स्कीम जो हमारी चल रही है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, कवरिंग ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर हियर। चलो जी, अब यहां से क्या करना है कि हमने स्वच्छता पढ़ा, अब आते हैं कंपोनेंट्स। आई टोल्ड यू देयर इज 3 प्रॉब्लम्स, दिस इज द 3 प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट इज कैटरिंग हियर। सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेयर योर गार्बेज, साइंटिफिक प्रोसेसिंग। ठीक है जी, आपने सुना होगा वेस्ट जनरेटर्स मशीन्स क्रिएट की जाती हैं इन द अर्बन एरियाज, दे आर क्रिएटेड हियर। दैट इज make all cities clean and garbage free, 100% scientific processing, door to door collection, door to door garbage collection, separate transportation, waste processing should be done here, waste generators,
कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन, वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज विल बी क्रिएटेड हियर, ठीक है जी, विद द एरियाज जहां पे पॉपुलेशन मोर देन 5 लाख है, इट्स सेड इट इज शुड बी क्रिएटेड. देन all legacy dump sites should be converted into green zones. And you might have heard about this thing in respect to the Delhi also, कि दिल्ली में आपने सुना होगा बहुत ज्यादा आता है कि यहाँ पे ना बोला जाता है कि नॉर्मल कॉस्ट कि दिल्ली में पहाड़ है भाई, दिल्ली में ना स्टार्ट में पहाड़ है, वो पहाड़ में एक्चुअली क्या वो डंप साइट्स इतनी बड़ी बड़ी when you enter the Delhi. So this is being said from that thing that we want to convert them into green zones. वो कैसे होगा? When we will be using the construction and demolition sites, we will be converting, ठीक है, जो वेस्ट है उसको हम किस तरह से रिसाइकल या रीयूज कर सकें. Then comes the second part in terms of sanitation. Now sanitation, if I talk about here, the important thing is open defecation free status should be sustained in every statutory town of India. Not more than 10 lakh हर जगह पे. अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स. आई थिंक आपने टॉयलेट फिल्म देखी होगी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, बट था तो वही ना, सैनिटेशन. गवर्नमेंट इज गिविंग यू द मनी, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड. दिस इज व्हाट हियर, कंस्ट्रक्शन ऑफ IHHL. देन कम्स योर urinals, so there should be community and public toilet seats should be created here, ठीक है जी. फिर क्या होगा? यूरिनल्स होने चाहिए along with retrofitting here. तो ये आ गया आपका सस्टेनेबल सैनिटेशन, ठीक है. अब आते हैं unused water management, which means known as grey water management. So what we are going to do here, we want to ensure that there should be no untreated facial sludge that is discharged into the environment. All used water will be do along with maximum reuse of treated water, वो होगा जहां पे सिटीज विद लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन. यानी कि जितना भी सीवेज का वाटर, सेप्टिक वाटर है, ठीक है ना, या ट्रांसपोर्टेड है विद द मैक्सिमम रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर शुड बी देयर इन ऑल सिटीज विद लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन. सो वहां पे रीयूजेज ऑफ वाटर करना है, ठीक है. कैपेसिटी बिल्डिंग्स हैव टू बी क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशनली कैपेसिटी फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ ग्रे वाटर मैनेजमेंट should be done here. So this is how the scheme is actually being run here. फिर आ जाता है अगला फीचर. Now what this scheme will help, या क्या क्या चीजें और करी जाएंगी. सबसे पहले we will ensure that there is complete access to sanitation facilities, and you might have heard this thing guys, you might have faced this things also. प्रॉब्लम क्या होता है कि यूरिनल्स नहीं होते हैं, so open defecation होता है, which is kind of creating unhygienic. तो वो चीज यहां से की जा रही है. Where you want that the migrations, it would be from urban or rural areas, they should have a proper access to the sanitation facilities through the construction of over 3.5 lakh individual, community and public toilets have to be constructed here. Then comes the second important thing, material recovery facilities, which means you should have a recovery facilities as well as waste processing facilities should also be used. जो मैंने sustainable आपको बताया था साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंडर. देन इज अर्बन रूरल कन्वर्जेंस. सो इट सेज इट्स नॉट जस्ट अबाउट अर्बन एरिया, दैट शुड अर्बन रूरल कन्वर्जेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स शुड बी टेकन अप ऑन क्लस्टर बायसेस व्हिच इज कैटरिंग टू ग्रुप ऑफ नेबरिंग अर्बन लोकल बॉडीज आल्सो रूरल एरियाज. इसका मतलब क्या है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाने हैं, मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज भी बनानी है. कहां पे? वेयर द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज on urban local bodies and area surrounding them, जहां पे बोला गया नए प्रोजेक्ट्स को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है जी. Then important thing here is aspirational toilets here. So what is aspirational toilets here? Aspirational toilets means that in terms of tourism spots you should maintain कि यहां पे हमारे पास हाई फुटफॉल है, वहां पे हमारे पास एडिशनल पब्लिक टॉयलेट्स हों. That is the main thing known as aspirational toilets here, ठीक है जी. Then in terms of informal waste workers, there should be provision of PPE kits, personal protective equipment kits, then should be safety kits also. इसके लिए एक स्कीम भी आती है for the manual scavengers, that is नमस्ते स्कीम. That's completely different, but वो याद देखें, वो आप सोच सकते हो यहाँ से. तो ये वेस्ट वर्कर्स के लिए है. लिंकेज होना चाहिए उनको गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ. Objective always remains on 3R, that is reduce, recycle and reuse and recycle. And then there should be annual ODF certification, जिसको हम बोलते हैं स्वच्छता पखवाड़ा भी आप बोलते हो. तो यहाँ पे आपकी थर्ड पार्टी के थ्रू सर्टिफिकेशन होगी, नॉट विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ मिशन इज वर्किंग, इट्स द आउटकम्स हियर.
all statutory towns are to be certified on the garbage free ratings. तो मैंने बोला garbage free ratings में आपको सर्टिफाइड करना पड़ेगा बेस्ड ऑन स्मार्ट फ्रेमवर्क हियर. सो ये आपकी स्मार्ट रेटिंग्स आती है, इसको स्मार्ट स्टार रेटिंग्स बोला जाता है. ठीक है, उसके बेस पे आपको दे शुड गेट एटलीस्ट 3 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग. ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स शुड बिकम ODF प्लस. ठीक है जी, विच फोकसेस ऑन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट्स. All statutory towns with less than 1 lakh population should get the ODF plus plus status. जिसका मतलब क्या होता है, you should focus on addressing safe containment, facial sludge कम हो जाए उसके ऊपर आपको फोन करना है, काम करना है. 50% of statutory towns with less than 1 lakh population should become water plus. Now water plus protocol says that there should be no untreated waste that is going into discharge or open environment or water bodies. This is the important targets of this specific mission. So I hope this Swachh Bharat mission is again clear to all of you कि कैसे हमें cleanliness करनी है in urban areas. Now I have an additional information for you. अगर आप बात करते हो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, तो मैंने हमेशा बोला ग्रामीण में हाउ टू रिमेंबर, पानी फेंक दो. गांव में हर जगह ना पानी फेंक देते हैं, तो कैसे याद करना है, जल शक्ति. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज द थीम हियर. Okay, so this is about this thing. Let's quickly go to the questions that we've discussed now. ठीक है जी, चलो पहला क्वेश्चन क्या था, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. लॉन्च 2021, टोटल फाइनेंशियल इज राइट. सिटीज ग्रो थ्रू एनुअल ODF, नॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, दैट वी हैव डिस्कस्ड. इट इज बाय थर्ड पार्टी. सो दिस statement is wrong here, rest all are right. So answer will be option number D. 1, 2, 4 and 5 will be the right answer here. Let's move towards this question. ठीक है, यहां पे सारे की सारी स्टेटमेंट्स ही सही दी हुई हैं, तो ये वाला आंसर भी मेरा सही हो गया, ऑल ऑफ द अबव हो गया. ठीक है, अब क्योंकि देखो C&D वेस्ट फैसिलिटीज होगी, देन सैनिटेशन फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड टू रूरल एंड अर्बन एरियाज. रिड्यूस रिसाइकल यूजेस मैंडेट दिया गया फॉर सेफ्टी किट्स एंड फंडिंग पैटर्न इज 33% ऑफ द सेंटर एंड सिस्टम. ये बिल्कुल सही है. चलो अब आते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज ऑन दिस थिंग हियर. ठीक है जी, which of the following statements are incorrect here? The center distribution for fund by states for urban local bodies is less than 1 lakh population. We have talked about it is half, 50-50. So this is wrong here. It covers all statutory towns. Absolutely right. So अगर दो सही है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. Program aims to achieve ODF free in less than with population of more than 10 lakh. That's wrong here because all statutory towns were covered here. So which means third is right. दो गलत है, थर्ड मेरा सही होगा. देखो जहां पे दो तीनों में थर्ड भी आ जाता है. Scheme was launched in 2014. This again tells me that this option again got eliminated. ठीक है जी, और देखो थर्ड यहां पे एलिमिनेट हो गया, 2 भी हो गया. अब 3 and 4 मेरे दोनों ही गलत है. अब फिफ्थ भी देखनी पड़ेगी. स्कीम इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी फॉर वेस्ट प्रोसेसिंग आल्सो. ठीक है जी, सो इसका मतलब क्या है कि जो वेस्ट प्रोसेसिंग है वो बिल्कुल सही था. माय फर्स्ट इज रॉन्ग, माय थर्ड इज रॉन्ग, माय फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो माय आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर बी. 1, 3 and 4 is the incorrect statement here. Clear on this scheme guys? हमने क्वेश्चन में देखा, स्कीम को भी डिस्कस कर लिया. अब बढ़ते हैं आगे ऑन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम, दैट इज द डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम. सो यू माइट हैव रिसेंटली हर्ड अबाउट ABDM, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, व्हिच इज रियली बीइंग सीइंग इन न्यूज. ठीक है ना. अब क्या है, ABDM के साथ दो न्यूज बहुत ज्यादा कॉमन आ रही थी. एक आ रहा था DHIS, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम, एंड सेकेंड वन वाज CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम. So DHIS is seen in news in the month of June here. You have to tell me because it has been extended. So you have to tell me which of the following statements are correct about DHIS. The question is in front of you. It was launched on 1st of January 2023 by the Ministry of Health and Family Welfare. The maximum incentive under the scheme is up to 4 crore for hospitals and diagnostic labs. Scheme aims to boost digital health transactions in the country under the ABDM. So answer will be option D, all of the above. Why? We will go to that also. फिर पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट यहां पे इनकरेक्ट है. इंसेंटिव्स, कीवर्ड इज 20 और मोर बेड. इंसेंटिव आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आभा आईडीज, आभा लिंक ट्रांजैक्शंस. डिजिटल सॉल्यूशन कंपनीज विद हैव अ नीड ऑफ अ मिनिमम ऑफ 15 हेल्थकेयर फैसिलिटीज जनरेटिंग ट्रांजैक्शंस. सो व्हाट शुड बी द आंसर हियर? आंसर यहां पे अगेन बी बनेगा. 1 and 3 आर इनकरेक्ट हियर. व्हाई? लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग.
digital health incentive scheme. As the name is suggesting, again focus on this thing, digital health incentive, which means this scheme will focus on for promoting the digital health, which means transactions जो हैं या लोगों को जितना का ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप डिजिटाइजेशन पे लेके आना चाहते हो, एंड फॉर दैट पर्पस यू विल बी गेटिंग इंसेंटिव्स. नाउ इफ आई आस्क यू वेरी बेसिक टर्म हियर, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव्स, इन योर ओपिनियन who will be getting the incentive here? The person or the institute? Let's think about that. कौन करेगा? अगला क्वेश्चन माइंड में क्या आया, यार ये तो सही है, कौन करेगा. दूसरा तो माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन कमिंग टू माइंड इज which type of health facilities are covered here? How they are going to understand that whether they should give the health incentive or not? क्योंकि कोई क्राइटेरिया तो रखना पड़ेगा. What is the criteria here? What is the amount of incentive that will be given here? These are the questions. And who will be catering this whole scheme? That is again my bigger question. And now let's go to the scheme here with this question in my mind, and let's solve those questions one by one. It's a new scheme launched in 2023 by the Ministry of Health and Welfare, which National Health Authority as the implementing agency. So my first question is clear. Who is implementing NHA? Boost digital health transactions in the country. किसके अंदर? ABDM, which means it's a part of, it's related to आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. ये मुझे फर्स्ट पार्ट डिस्कस करना है. It's a central sector scheme, which means again government is looking at the whole scheme here. Financial outlay for the scheme is 50 crore rupees here. Now this scheme has been extended till 30th of June 2025. That's by again by 1 year. Now comes my main question: who is getting the benefit here? So it says all health facilities. It could be clinics, it could be nursing homes, it could be hospitals, laboratories. All these will be incentivized here. Then comes my second question: if these are incentivized up to how much? Maximum incentive will be 4 crore to hospitals, diagnostic labs, digital health solutions. ठीक है जी, इनको ये पैसा मिलेगा. Maximum incentive. Now, how the incentives can be achieved is my next question. Then comes my this thing. The incentives will be availed by health facilities with the registered in terms of registration under the Ayushman Bharat Digital Mission. यानी कि incentives उन्हीं health facilities को मिलेगा जो कि health finance health facility registry. You might have heard in ABDM there are two things: Aadhaar IDs. ठीक है, that is a 14-digit unique ID for the Ayushman Bharat health account. Then we have healthcare professional registries, which means all type of healthcare professionals, be it traditional or non-traditional, will be covered here. Then we have a term known as HFF, healthcare facility registry, HFR. तो यहां पे आपकी पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज दोनों आती है. तो अगर यू आर एलिजिबल, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस लिस्ट, यू विल गेट द इंसेंटिव. कितना मिलेगा, किसको मिलेगा, ये डिसाइड हो गया. अब आते हैं हाउ टू यू बी गेटिंग टू अंडरस्टैंड कि इंसेंटिव देना कैसे है. सो फॉर दैट पर्पस दिस इज द क्राइटेरिया गिवन फॉर इंसेंटिव्स. इट सेज इट वुड बी गिवन टू दोज फैसिलिटीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे शुड हैव 10 और मोर बेड. There is a laboratory or diagnostics test, they will be given the benefit. Digital solution companies. Now the question is why DSS will come. Digital solution companies भी eligible हैं, but there could be the important thing that how these incentives are made. They are linked to the number of Aadhaar linked transactions, which means you will only be getting the benefit if you get to understand कि जो transactions हो रही हैं are they done with the help of आयुष्मान भारत health account or not, which means जो records आप कर रहे हो, records created हैं, क्या वो linked हैं to the आयुष्मान भारत health account? If they are linked, you will be getting the health incentive benefit. Getting this point, because आयुष्मान भारत health account is what? It is a normal kind of an account where आपको अपनी सारी के सारी हेल्थ के बारे में पता चल जाएगा. And if you are promoting the digital system, these laboratories, these health facilities are promoting those things, they will get the incentive for that thing. This is the point here. ठीक है. Now for the Aadhaar linked transactions,
डन बाय द फैसिलिटीज हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस डिजिटल, या फिर डायरेक्ट इंसेंटिव का पार्ट वो नहीं है, तो उनको बेनिफिट कौन देगा? उनको इंसेंटिव देंगी डिजिटल सॉल्यूशन कंपनीज. दिस इज हाउ DSCs विल वर्क. They will be helping those facilities which are not getting direct benefit, but they are getting benefit through DSC. और digital solution companies के लिए eligible करने के लिए आपको क्या बनेगा? You need that there should be minimum 10 healthcare facilities should be generated in a monthly cycle. ठीक है? Minimum 10 healthcare facilities should be generating transactions in a monthly cycle here. और जो public sector facilities हैं, ठीक है ना, for the facilities for that shall be added under the Rogi Kalyan Samiti or any similar pool of the facility. This is all about digital health incentive scheme. Let's quickly talk about the questions that we've discussed here. First question was on the correct statement. So guys, all the statements are correct here. ठीक है जी, 4 crore मिलेगा, ABTM का पार्ट है. अगला आ जाते हैं, इनकरेक्ट कौन सी है? Incentives will be provided to health facilities with 20 or more beds. It is 10 or more beds. Digital solution companies need a minimum of 50. No, it need a minimum of 10 healthcare facilities generating transactions in a monthly cycle to be eligible. So which means my first and third statement becomes incorrect here. Option B, 1 and 3. Okay. Now let's talk about my next important question or the next important scheme, that is Prime Minister's Employment Generation Program scheme. अब employment generate करनी है, उसके ऊपर आते हैं. Let's look at the question here, guys. These are the two questions on PMEGP. ठीक है? ठीक है. So if you have covered those schemes, that's really good, guys. But नहीं पढ़ी है तो समझ लो, मैं बार बार बोल रहा हूं. क्वेश्चन बोला गया है जी, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला पार्ट देखो, ये वाला. Is individual above 21 years of age eligible or not? That is the wrong answer here. Answer बनेगा option number C. 1, 2, 3 and 4 is the right answer here. This is wrong. Why? We'll come to that part. Let's look at the second question. Again in front of your screen. ठीक है जी. एंड गाइस अगेन वन थिंग, बहुत बच्चे बोले सर हमें स्क्रीनशॉट लेना है. देखो स्क्रीनशॉट पे मत फोकस करना, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है, बट आप इनको प्रैक्टिस जरूर करना इन क्वेश्चंस को. इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है? सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर ए 3 and 4, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्कीम इन डिटेल फर्स्ट. प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, अगेन गो टू द स्कीम हियर. इट इज सेइंग प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट generation, which now means you have to focus on generation of employment. Let's look at the questions coming into my mind. First of all, employment generation. What type of employment generation? How this will be generated? ठीक है जी. अब इसमें हाउ में पता चले क्या क्या मिलेगा, ठीक है जी. देन हु, किसको मिलेगी? हाउ, हु, व्हाट, ये चीज होगी. नाउ लेट्स गो टू द स्कीम हियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट द क्वेश्चंस हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर द नोडल एजेंसी इज योर KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज द नोडल एजेंसी हियर अंडर द, एंड इट्स मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट. 2008 में ये स्कीम हमारी स्टार्ट हुई थी. स्टेट लेवल में स्टेट KVIC डायरेक्टरेट्स और KVI बोर्ड्स आर इंप्लीमेंटिंग दिस स्कीम. नाउ द ऑब्जेक्टिव इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी वांट टू गिव, हाउ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विल बी क्रिएटेड. क्या करना चाहते हो? सिंपल बात है, वी वांट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वेयर इन बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज. हाउ? by self-employment ventures or micro enterprises. This is comes to my question. क्या करना चाहते हो, कैसे करोगे? ऐसे करेंगे जी, ठीक है जी. Then we will be, who will be brought together here? They will be targeting on to bring together the widely dispersed traditional artisans, rural and urban youth employments and give them the self employment. यानी कि जिस तरह की employment you want to generate here is self employment. Then it should be continuous and sustainable employment. This is the most important thing. Employment should be continuous. It's not कि दे दियो चलेगी, नहीं. Continuous and sustainable employment to a large segment of traditional and prospective artisans, which means somehow it is focusing on traditional artisans और unemployed youth. वेज अर्निंग बढ़ानी है, ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो वेज तो जनरेट होगी ही होगी. देन इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम
15 फाइनेंशियल यानी कि इट विल बी इंप्लीमेंटेड टिल 21-22 to 25-26 years. Target is 4 lakh projects. This is the important point because you are now setting up employment projects here, and for that what we are doing is we are saying कि हम लोग 4 lakh projects और माइक्रो एंटरप्राइज सेटअप करेंगे which will create a 30 lakh employment. In addition to 1000 units will be upgraded. So this is the target. This is the upgradation in each financial year. 1000 हर financial year में आप upgrade करोगे. Now comes the next important thing. Who is actually eligible here to get this part here? First of all, it says if you are a new enterprise, then individual should be age 18 years of age. There should be no income ceiling for assistance for those new enterprise units. Minimum qualification is standard 8. You should be 8th pass. For that, if you are 8th pass, for what pass now you will be eligible? अगर आप you are working on any enterprise related to service sector, then you will be getting a benefit of 5 lakh तक के लिए आप eligible हो. ठीक है? ठीक है? For projects above rupees 5 lakh, this is the eligibility. And projects above rupees 10 lakh, eligibility standard 8. This is the point to be remembered. Above 5 lakh, standard 8. Above 10 lakh, standard 8 is the thing. He should not have availed any government subsidy. That's a common in every scheme. तो ये भी यहाँ पे same चीज है. Projects without capital expenditure are not eligible, which means you have to perform such sort of activities जहाँ पे आप कैपिटल ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर करोगे ताकि आपको रेवेन्यू जनरेट हो सके. ठीक है जी. ट्रेडिंग ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज मे बी परमिटेड. ओनली 1 person फ्रॉम अ फैमिली इज एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट अंडर द PMEGP स्कीम हियर. दिस इज फॉर द न्यू पर्सन बिकॉज इसके पास कुछ नहीं है इसके लिए. अब आपने बोला यू विल बी अपग्रेडिंग 1000 यूनिट्स ऑल्सो. नाउ द यूनिट्स which you are upgrading 1000 every year, for that purpose, for those upgradation, the point is how you will be getting them upgraded. That is this thing. You will provide them margin money subsidy. Margin money subsidy, which will be adjusted on the completion of 3 years lock-in period. ठीक है. अगर आप 3 साल के लिए मोटा मोटा आपको मार्जिन मनी सब्सिडी दी जा रही है, उसके बाद जो 3 साल का लॉक इन है वो आपको यहां पे दिया जाएगा. देन फर्स्ट लोन अंडर PMEGP और मुद्रा हैज टू बी सक्सेसफुली रीपेड इन स्टिपुलेटेड टाइम. तो आपको यहां पे अपग्रेडेशन लगेगा. आपका पहला लोन रीपे हो जाना चाहिए. एंड देन इज योर प्रॉफिट मेकिंग यूनिट. ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट ओनली ऑन दोस थिंग्स जहां पे आप प्रॉफिट कमा रहे हो. अगर नहीं कमा रहे तो गवर्नमेंट विल नॉट बी हेल्पिंग यू. ठीक है जी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ दिस थिंग्स आर डूइंग हियर. किस तरह काम कर रही हैं. सबसे पहले क्रेडिट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया. क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम फॉर द PMEGP हैज बीन लॉन्च्ड वेयर द प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना और द रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इज बीइंग मर्ज्ड हियर. फंड्स आई टोल्ड यू विल बी गिवन इन 2 types, margin money subsidy and the backward and forward linkages. Okay, now margin money subsidy, that is a kind of one time assistance. 1 साल के लिए असिस्टेंस आपको मिलेगा मार्जिन मनी सब्सिडी का. ठीक है जी. किसके लिए मिलेगा. फॉर न्यू एंटरप्राइजेस. द मार्जिन मनी इज अवेलेबल फॉर न्यू एंटरप्राइजेस एंड इट विल बी गिवन फ्रॉम द फंड ऑफ 100 करोड़. जो एक फंड बना जा रहा है मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए 100 करोड़ के लिए, जिसको के PMEGP या फिर रुद्रा PMEGP और मुद्रा यूनिट्स के अंडर बनाया जा रहा है. उसके अंडर you have a fund of 100 crore and from there you will get the margin money subsidy. Then comes the backward and forward linkage, that is your 5% here. Now let's talk about how this margin money will be given here. Margin money simply means first of all for the general category people, normal. ठीक है. जनरल कैटेगरी के सिंपल रूल याद रखना है. सबसे ज्यादा रूरल में देता है इंडिया. रूरल, अर्बन और कंट्रीब्यूशन, which means you will get a margin money of 25% in rural areas, 15 urban, 10% आपको खुद कंट्रीब्यूट करना. वहां पे भी अगर आपने खुद कंट्रीब्यूट तो वहां पे भी आपको 10% का मार्जिन मनी मिल जाएगा. देन इन टर्म्स ऑफ स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी इंक्लूड्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, वुमेन्स, SC ST एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है जी. बॉर्डर एरियाज या फिर जो भी गवर्नमेंट नोटिफाई कर रहा है वो इसका पार्ट बन जाएगा. एंड हियर इट इज
35, 25, 5. I said 25 plus 10, 25 plus 10, 35, 15 plus 10, 25, 10 का हाफ कितना हुआ 5. बस इस तरह याद कर लो. 35, 25, 5% 35% rural, 25 urban and 5% is for beneficiaries contribution. This is about the margin money जो कि यहां पे आपको मिलेगी. ठीक है, सब्सिडी टू द बेनिफिशियरीज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैक्सिमम कॉस्ट. मैक्सिमम कितना मिलेगा फॉर दी मार्जिन सब्सिडी? सो मैक्सिमम in terms of manufacturing sector it is 50 lakh, in terms of services sector it is 25 lakh rupees. Balance amount it says excluding the contribution of the person itself, ठीक है जी, of the total project may be provided by bank also without any subsidy. बैंक भी दे सकता है, ठीक है जी, by provided by bank without any government subsidy. This is the maximum admissible for margin subsidy. Margin money मिलती थी न्याय के लिए. Now the older one, upgradation part here. What is the upgradation? So second loan upgradation कैसे होगा? Rate of subsidy here in terms of upgradation it is 15% normal, 20% in north eastern region. बेनिफिशियरी को कितना बेनिफिट मिलेगा? 10%. देखो फंडा यही है, बस अब अपग्रेडेशन में 15, 20 और 10 हो गया. ठीक है जी. अब आते हैं मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट. नाउ यू आर डूइंग दी मैक्सिमम प्रोजेक्ट फॉर, क्योंकि यहां पे मार्जिन मनी का था, अब प्रोजेक्ट के लिए कितना मिलेगा? मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट दैट इज एडमिसिबल फॉर अपग्रेडेशन इज ₹1 crore इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. मैक्सिमम सब्सिडी हियर विल बी 15 lakh एंड 20 lakh, जो यही होगा 15% और 20%. सर्विस सेक्टर और बिजनेस सेक्टर 25 lakh इज द मैक्सिमम यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट. 25 का 15 होता है 3,75,000 पे, 25 का 20% होता है 5 लाख. तो ये यही बोल रहा हूं मैं 15-20 वाला, यही वो चीज है. बिजनेस और सर्विस सेक्टर बैलेंस अमाउंट इट इज अगेन से द सेम थिंग कि वो बैंक्स भी दे सकते हैं विदाउट एनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन. देन इज टर्म्स ऑफ द पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अगर आप खुद पर पर्सन इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है? दैट इज 3 lakh इन प्लेन एरियाज और 4.5 lakh इन हिली एरियाज. नाउ it says per capita is enhanced to 4.5 lakh as a special case for Andaman and Nicobar and the Lakshadweep Island here. तो आप समझ रहे हो ना कि दो तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं. एक तो न्यू अपग्रेडेशन, हमने एलिजिबिलिटी पढ़े. न्यू को मिलती है मार्जिन मनी सब्सिडी. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मार्जिन मनी सब्सिडी. मैक्सिमम फॉर मार्जिन मनी सब्सिडी. अपग्रेडेशन, दिस इज द अपग्रेडेशन. Maximum cost for upgradation, that's the per capita. Now comes the next important thing for the skill development. Entrepreneurship development program will be constructed, that is for online or offline mode here. Now it sees at least 5 days for project cost up to 5 lakh. अगर आपकी 10 लाख से ऊपर की 10 लाख है, सॉरी at least 10 days with project cost above ₹5 lakh. एक फंडा यहां पे क्या है? If you have a project cost up to ₹2 lakh, then your training is not mandatory, or no ADP program training is mandatory. Now remember here, it is being said it is not mandatory, but it does not mean कि 2 लाख से कम वाला बंदा ट्रेंड नहीं हो सकता. हो सकता है, बट उसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि भाई आपको करनी ही करनी. इनके लिए तो मैंडेटरी है. कब 5 से कम है तो 5 दिन, 5 से ज्यादा है तो 10 दिन की आपको ट्रेनिंग, यू हैव टू डू द ट्रेनिंग हियर. देन कम्स दिस थिंग हियर, RBI says that project costing up to ₹10 lakh under the PMAGP is collateral free. That is the point to be remembered here. Collateral free भी हो गया. फिर CGT MSC क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSMEs, दिस इज अगेन कमिंग प्लेइंग अ प्रोमिनेंट रोल हियर. ये बोल रहा है कि हम आपको 2 करोड़ तक की गारंटी, वी आर गारंटिंग दैट थिंग टू दी थिंग, गारंटिंग कर रहे हैं हम लोग ये चीज. दिस इज हाउ दिस स्कीम इज एक्चुअली बीइंग वर्किंग हियर. I hope PMAGP is clear. If I just brief this thing for you guys, remember here PMAGP is employment generation, new upgradation. So new eligibility, upgradation eligibility. New will be getting this part, margin money. ठीक है जी, this is margin money in rural area, in the general cases and special cases. This is the margin money maximum cost. Then upgradation, this is the part here. 15%, 20%, 10% बेनिफिशियरी का, मैक्सिमम 1 करोड़ 25 लाख. ठीक है जी.
ये हो गया हमारा पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और फिर आ गया ये ट्रेनिंग हियर. So this is about the scheme. Let's talk about the questions that has been asked in the thing here. अब आते हैं पहला क्वेश्चन. यहां पे 21 years नहीं है, 18 years eligibility है to apply for the system. So that is why 1, 2, 3 and 4 is the right answer here. Then let's talk about this thing here. Scheme provides a margin money subsidy of up to 50 lakh for projects in manufacturing sector. बिल्कुल सही है. Only 1%, that's again right here. Maximum is 25 lakh, 20 lakh है. So this is the wrong here. The scheme targets for the setup of about 2 lakh projects. No, it is about 4 lakh projects and about 30 lakh employment opportunities. Do let me know in the comment section with regards to here upgradation project every year. Upgradation projects every year. That's the point you need to remember here. ठीक है, फिर ये टेन्योर वाला पार्ट भी यहाँ पे सही है. So that's why 3 and 4 is incorrect here. Now guys, let's talk about the final schemes for the day now. Final 3 schemes of the day. पहली है, ये मैंने स्कीम आपको सिटी 3 सिस्टम में पढ़ाई थी, इसका नाम था नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम फॉर द फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉर टॉक अबाउट दी फॉरेंसिक्स जिसको हम बेटर करना चाहते हैं, उसके लिए पूछा गया यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है. Objective is to strengthen India's criminal justice system. If you look at just basic things, provided financial outlay is provided by the Ministry of Home Affairs. Now I told you forensics घर पे काम आता है, घर पे कौन आता है, Home Affairs आती है. This is how you could remember here. Forensics, home. Remember. Tenure 25, 26 to 30, 31. Is it 30, 31 or something else? Let's think about that thing. One of the component of the scheme is establishment of central forensic science laboratories in the country. Is it yes or no? Scheme aims to alleviate manpower shortages and reduce the backlogs in forensic cases. तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा जी? ठीक है, let's look at the answer here. Answer will be option number C, 1, 2, 4 and 5. Now let's try to understand the scheme of forensic scheme here. National forensic infrastructure. Simply again go to the name here. National level forensic. What in forensic infrastructure? What to do? Enhance the infrastructure. And if you have to enhance the infrastructure, obviously you have to create new infrastructures. तो वो क्या कर रहा है? Central Forensic Science Laboratory बना रहा है. Existing infrastructure of Delhi campus of Central Forensic University is being upgraded. Campuses will be set up for National Forensic Science University, which means this is the infrastructure upgradation. ठीक है? Why we want this infrastructure upgradation? This is the next thing here, so that we could strengthen the criminal system. जहां पे आपकी जो एड्रेसेस हो सकते हैं, बिकॉज आप देख रहे हो आजकल बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है फॉरेंसिक साइंस की. ठीक है जी, फॉरेंसिक सर्विसेज की एनहांस हो सके, लॉ रिक्वायरमेंट प्रॉपर हो चुके. एंड व्हाई दिस थिंग इज रिक्वायर्ड, व्हाई स्ट्रेंथनिंग इज रिक्वायर्ड? बिकॉज वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर. दैट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम. एक्सपेंशन कर दीजिए क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज है, मैन पावर पूरी हो जाएगी, केस लॉग पूरे हो जाएंगे. दिस इज व्हाट द स्कीम इज ऑल अबाउट. ठीक है, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यू क्रिमिनल लॉज रिक्वायर द इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑफेंसेस विद पेनल्टीज ऑफ 7 years. This is the point to be remembered here. That is, if a penalty is more than 7 years or more, then it requires a proper forensic investigation, and for that we need a manpower. For that we are increasing our manpower. For that we are expanding the forensic system in India, and the target for that is till 28, 29 years. अब forensics कहाँ पे आता है? घर पे आता है आपके टेक करने. ठीक है जी, तो this is how to be remembered. Ministry of Home Affairs. And financial outlay is 2,254.43 crore rupees here. So coming to the question, the only thing is this is wrong here because it's 2028, 29. This is the thing here. Okay. Now let's talk about the next important scheme for the day, that is viability gap funding scheme for the offshore wind energy project. This is again a scheme that I have already discussed with you here, guys. Okay. The objective of the scheme is to initiate the offshore wind energy projects under the National Offshore Wind Energy Policy of 2015. Total financial outlay is 7,453 crore rupees here. Now it says in this 7,453 crore rupees, 6,853 is for making offshore wind energy projects and 600 is for the upgradation of 2 ports here. फिर लिखा है scheme will be implemented solely by the Power Grid Corporation of India Limited. Now this is a keyword here, solely. क्या सिर्फ
पीजीसीआई पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ही इंप्लीमेंट करेगा या फिर कोई और भी इंप्लीमेंट करेगा? दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड हियर. लेट्स लुक एट द आंसर हियर. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 1, 2 and 3. But why? Let's understand this scheme. It's again, let's look at the thing here. Look at the word viability gap funding. What purpose? Implementation of offshore wind energy project. My first question is, where we are setting up this project, then how much funding will be done, or who will be the participating person here. Now my first question is objective. मैंने बता दिया. इनिशिएट क्या करना है? India's first offshore wind energy project, that is as per the National Offshore Wind Energy Policy of 2015. तो ये होगा, इसलिए बनाना है. And it is MNRE. Money 7,453 crore rupees divided between 6,153 and 600 crore rupees. Now my point is, where we are going to set up this offshore wind energy projects, that is in Gujarat and Tamil Nadu, with how much capacity? 500 megawatt each, which goes into 1 gigawatt of offshore wind energy projects. Now when you're talking about Gujarat and Tamil Nadu, guys, for that thing you obviously is wind energy की बात करें तो wind energy क्या होता है? जहां पे coastal areas होते हैं वहां पे winds बहुत ज्यादा आती हैं. उसके लिए you need the development of ports also, so that you could meet the logistics of this offshore wind energy projects. For that part there will be upgradation of 2 ports also, and for that part 600 crore rupees will be given under this specific scheme here. Now who is implementing? It is said it will be developed by the private entities. So private entities develop कर रही हैं, ठीक है. They will be doing transparent bidding. Important thing is that infrastructure, जो offshore substation के infrastructures हैं, that will be set up by Power Grid Corporation of India Limited, which means it is not solely set up or implemented by PGCIL. It is implemented by PGCIL, where the private entities will also be playing a prominent part here. Viability gap funding जो है वो क्या है? Viability gap funding will be subsidized to make the generated power economically viable. ठीक है, ताकि जो आपकी कॉस्ट है, आप अगर डिस्कॉम्स को भेजो वहां पे आपको बेनिफिट हो सके. Obviously if I talk about here, we are working on environmental friendly things. So what is the environmental impact of this thing? Environmental and economical impact of this project is that we will be able to generate or reduce the carbon dioxide emission from 3.72 billion units of electricity to 2.98 million tons over the next 25 years. तो काइंड ऑफ हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है? हम अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन है उसको कम कर सकें, एंड वी कुड मेक अ क्लीन फ्यूल. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम. Okay, now let's talk about the final scheme for the day. This is again a new scheme that has been announced, that is trade enablement and marketing scheme here. So question is objective. What is the objective of the scheme here? The objective of the team scheme is to boost e-commerce markets for MSME with the help of ONDCs. Then the next important thing here is the scheme is expected to benefit 5 lakh MSMEs, of which 50% will be women-owned enterprises. Is it yes or no? The team is implemented by the Ministry of MSME. Now question is asking you which of the following statements are incorrect. तो हमें बताना है incorrect कौन सी है. यहाँ पे ऑप्शन ई सभी की सभी करेक्ट हैं. अगेन लेट्स लुक एट दिस थिंग. अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने 2 इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस किए हैं, यशस्विनी एंड टीम. Divanshu sir has already, I think, discussed with you in the CT 360 classes also. So guys, if you are new here, you can also watch our series of CT 360, because वो डेली सीरीज है हमारी, जहां पे हम आपको मिलते हैं Tuesday, Thursday and Saturday, that is at 5 PM. We are again covering the important current affairs of GA and ESI, where we cover some important schemes also, reports also, and ESI current affairs for the examination of both RBI and NABARD. ठीक है, तो आप इसको भी विजिट कर सकते हो, because that will also be helping you in this part with regards to the current preparation. Now let's talk about this team scheme here. टीम स्कीम का मतलब क्या? हम एक टीम बनाना चाहते हैं. किस चीज के ऊपर? फॉर ट्रेड एनेबलमेंट एंड द मार्केटिंग ऑफ द ट्रेड. नाउ व्हाट इट विल डू? इट विल बूस्ट
the e-commerce access for the MSMEs. And you can see here guys, this year गवर्नमेंट्स प्राइम फोकस इज ऑन एमएसएमईज, मतलब बजट में भी एमएसएमईज यहां पे भी एमएसएमईज पे ऊपर फोकस किया जा रहा है ताकि उनका ई कॉमर्स एक्सेस बढ़ा जाए विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटाइजेशन प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स दैट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, दैट इज ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ऑन व्हिच RBI has asked the question previous year. Descriptive पूछा है, they might ask you objective question this year also. Nodal ministries, Ministry of MSMEs, total outlay was 277 crore rupees and it is being launched for 3 years. ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 5 लाख एमएसएमईज जो हैं विल गेट द बेनिफिट ऑफ विच 50% वुड बी ओन्ड बाय वुमेन एंटरप्राइज, दे आर गेटिंग द बेनिफिट्स हियर, यानी कि उनको ई कॉमर्स एक्सेस मिल जाएगा, बेनिफिट होगा. नाउ हाउ दे विल बी गेटिंग बेनिफिट हियर, बिकॉज गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग देम द असिस्टेंस फॉर ऑनबोर्डिंग, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, डिजाइनिंग, उसके लिए गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग देम द फाइनेंशियल assistance here. ठीक है. Now the important thing is it has been launched under the World Bank supported RAMP scheme. So this scheme is again important now, RAMP scheme. ठीक है. RAMP scheme के अंदर इस चीज को लॉन्च किया गया है, ठीक है जी, and is implemented by National Small Industries Corporation. So it is the implementing agencies NSIC here. So this is about the session for the day guys. I hope you have enjoyed the schemes, you have learned each and every bit of a scheme here, because I again say one thing here, अब वो टाइम आ चुका है आपके लिए, चाहे आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, अब आपका फोकस होना चाहिए टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. मैं हमेशा बोलता हूं लास्ट 3 months प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है. तो आप इन स्कीम्स को बार बार देखो, बार बार समझो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. प्रैक्टिस एज मच नंबर ऑफ एमसीक्यूज एज यू कैन, बट द फर्स्ट थिंग इज, अब इस टाइम पे पहले प्रैक्टिस करो, मत भागना, पहले समझो इन टर्म्स ऑफ स्कीम्स, इन टर्म्स ऑफ आरबीआई नोटिफिकेशंस. दीज 2 थिंग्स आई ऑलवेज से, प्लीज अंडरस्टैंड देम फर्स्ट. डू नॉट जस्ट जंप टू द क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चंस से शायद ना हो, जब तक स्कीम समझ पाओगे, उसका ग्रिटी समझोगे, तब जाके आपको क्लियर होगा. ओके, सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस थिंग. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. डू लेट मी नो के सेशन में कैसा लगा, मजा आया आपको, स्कीम समझ आ रही है. और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज द लिंक फॉर दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. इफ यू आर न्यू गाइस, यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, यू नीड अ क्विक बूस्ट with regards to your examination preparation, you can avail the crash courses for both RBI and NABARD. crash courses available हैं, आप उनको avail कर सकते हो, ठीक है जी, by visiting our website, that is www.edutab.co.in. For any query, just drop me a mail at hello@edutab.co.in, or you can have a call with me on the number 8146207241. So I hope guys the session is really fruitful for you. So I wish you all the best for the examination. Keep working hard, keep preparing hard, and we'll be meeting you in the upcoming sessions. But उसको एंड करने से पहले सेशंस कब होने वाला है ये बता देता हूं. आपके सेशंस प्लान है जी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, दैट इज एट 7 PM. आरबीआई वालों के लिए सारे इंपॉर्टेंट है. नाबार्ड वाले क्या कर सकते हैं, आरबीआई नोटिफिकेशन वाला सेशन आप छोड़ सकते हो. बाकी सेशंस आपके लिए भी उतने ही रेलिवेंट है जितने वो आरबीआई वालों के लिए रेलिवेंट है. ऑन दैट नोट, आई विश यू ऑल द बेस्ट. बाय बाय.